Hello and welcome back to this amazing platform of लॉ वाला. I am Isra Khan, your law mentor. और आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करने वाली हूँ थियोरेटिकली एज वेल एज आपको एंड तक के बने रहना है. क्यों? क्योंकि हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो जैसा कि प्लान था हमारा, हम लोगों ने मेजर टॉपिक्स आपके साथ कवर कर लिए, मेजर सब्जेक्ट्स हम लोगों ने आपके साथ कवर कर लिए. और आज का सेशन किस एजेंडा से होने वाला है? द बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू हियर इज that by the time you are going to watch this video, the marathon session, आपका एग्जाम एकदम सर पे होगा. And here you just need what? Revision. And what type of revision? Rapid revision. Just like the rapid fire happening in Coffee with Karan, just like that. So हम लोग rapidly बहुत ही जल्दी से सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, क्योंकि by the time अभी तक की आपकी सारी चीज़ें ऑलरेडी तैयार हो जानी चाहिए. As we all know, Indian Constitution plays a very important role in the Delhi Judicial Service examination. So you have to keep a focus on this subject regarding GK as well as in law. So all that which is important in the Indian Constitution, in today's session you are going to cover it within 2 hours. आज के session को हम लोग cover करने वाले हैं along with the questions. So I hope you all are ready and excited for the upcoming rapid fire session of Indian Constitution. और ये बेसिकली हमारी मैराथन क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं उनको कवर करेंगे. And with the help of this video, you are going to have a broader outlook, a complete overview over the subject, and you are definitely going to have a grasp over the subject. You will be feeling confident कि yes yaar, I know something about the Constitution. Alright, so without any further ado, let us just start off with the video. I hope the audio video is clear. So today is our marathon session. As we all know, the Indian Constitution is divided into 22 parts. 22 parts हैं. Part 1, Union Territories, Citizenship, Fundamental Rights, Directive Principles, Fundamental Duties added by the 42nd Amendment Act. Then you have the Union, which is divided into 5 chapters. States divided into 6 chapters from Article 152 till Article 237. Then you will find Union Territories, Panchayats, municipalities, cooperative societies, scheduled and tribal areas, relations between Union and states, finance, property, contract, suits, trade, commerce and intercourse. Part 14, services under the Union and states, tribunals, elections, certain classes से related, जहाँ पे scheduled caste, scheduled tribes से related commissions के बारे में बात करी गई है. 17 official languages, 18 emergency provisions, miscellaneous amendment, temporary provisions wherein we found the abrogation of Article 370, which has been highly in dispute regarding the petition which has been filed to reconsider it. And lastly, the short title and commencement. Usually we find the short title in the beginning, the chapter 1, but no, here in the Constitution it is unique in every sense. You will be finding it in the part 22. Moving forward, we have 12 schedules. You should know about them. Very important. I have also told you a trick, that is tiers of old PM. T stands for territories, E stands for emoluments, A stands for oath and affirmations, R stands for Rajya Sabha's MP count, and S stands for scheduled areas, O stands for other scheduled areas, L stands for languages, and the P stands for panchayats, M stands for municipalities, and O official languages, land regulations, and D for defection. Old tiers of old PM. Forget about the trick. So आपको पता होना चाहिए ये 12 शेड्यूल्स हैं, जिसमें आर्टिकल जो शेड्यूल 10 है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शेड्यूल 10. उसके साथ ही साथ आपका जो शेड्यूल 3, शेड्यूल 2 वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर सर्टेन शेड्यूल्स which are very important for exam point of view. And what are schedules? Schedules are supplementary, they are the provisions, the additional information providing, and they are supplemental to the articles, the provisions given in the Constitution, and it provides additional knowledge which in a way it supplements the articles, like article 343 से अगर आप शुरुआत करिए पार्ट 17 की, पार्ट 17 कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पार्ट 17,
ये जो पार्ट है इसको आप लिंक करके पढ़ेंगे किसके साथ, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ। उसके बाद ये जो सेंटर से स्टेट रिलेशन से रिलेटेड जो पार्ट 11 है आपका, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, इसको आप शेड्यूल 7 के साथ पढ़ते हो, समझ रहे हो आप। सो इन दिस सेंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओथ के बारे में आपको देखने को मिलेगा, बार बार आपको सैलरीज के बारे में देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पार्ट 1 के साथ, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे प्रियम्बल क्या कहता है। और प्रियम्बल का जो बेसिक इशू आता है, अमेंडमेंट हुआ आपको पता होना चाहिए बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन बनता है कि इज इट अ पार्ट, क्या ये भारतीय संविधान का एक भाग है, और ये भारतीय संविधान का भाग नहीं है। जो इशू आता है, जो मेन कंसर्न होता है, और बेसिक चीज यहाँ पे आपको जानने की ये है कि ये जो प्रियम्बल है, it is a kind of preface to our constitution wherein you are given of the philosophy of the constitution, और कहीं ना कहीं बताया जाता है आपको कि किस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पहली चीज़ तो नेचर क्या है, पहली चीज़ तो नेचर पता लगती है, कब हमने अडॉप्ट किया, और साथ ही साथ हमें ये भी पता लगता है कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक एजेंडा, हमारे गोल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, और हमने अपने भारत को किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करा है। सेक्युलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वी ऑल नो दैट। सो ये सारी चीज़ें हैं, हमें ये पता होना चाहिए। केशवानंद भारती का लैंडमार्क जजमेंट है यहाँ पे। पहले री-बेरीबेरी यूनियन का केस था जहाँ पे कहा गया द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट, द प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेन इन द व्यू of the Supreme Court was rejected in the Keshavananda Bharati case, and now it stands the same. 42nd Amendment Act से 3 words को ऐड किया गया, secular, socialist and the word integrity. All right, चलिए moving forward, पार्ट 1 की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियरली आर्टिकल 1 अभी हाल ही में चर्चा में भी रहा। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया या भारत क्या बुलाया जाए, यूजुअली मैं अपना अगर व्यू पॉइंट रखूं तो भारत फील्स पर्सनल, इट फील्स वेरी वेरी नाइस, बट if talking about the constitution, it has not divided. The constitution is not discriminating in both the words. It just says that अगर आप internationally, अगर बाहर यूज करोगे वर्ड तो आप इंडिया यूज करते हो। इंडिया दैट इज भारत, भारत है, इंडिया इज भारत एंड भारत इज ऑल्सो इंडिया। ठीक है, अगर आप हिंदी में देखोगे तो अलग लिखा होगा, इंग्लिश में देखोगे तो अलग लिखा होगा, इट इज द सेम, बट when usually it is used internationally, it is used as India। और भारत में यू नो पर्सनल फीलिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं राजा भरत के ऊपर, और जो इंडियन हिस्ट्री रही है, जो माइथोलॉजी रही है, जो पुराण रहे हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं बेस्ड है और पर्सनल टच होता है। ठीक है, और ये जो शब्द आप देख रहे हो, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज नोन एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप जानते हो इंडिया को एज अ फेडरल स्टेट हमने कॉन्स्टिट्यूट किया है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। तो यहाँ पे हम लोगों ने फेडरेशन वर्ड यूज क्यों नहीं किया, इसीलिए नहीं किया इन द यूनियन ऑफ स्टेट्स हमने वर्ड इसीलिए यूज किया, द फ्रेज इज बीन यूज्ड बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन दैट हमने स्टेट्स को यहाँ पे इतनी पावर नहीं दी है कि स्टेट्स अपने आप को एज फ्रॉम द कंट्री अपने आप को सेपरेट कर लें। तो पहली चीज़ तो हम स्टेट्स के एग्रीमेंट पे नहीं बने, हम किसी भी स्टेट के एकजुट होने के मोहताज नहीं थे, हम एक कंट्री फॉर्म हुए, वी आर अ रिपब्लिक कंट्री। दूसरी चीज, हमने स्टेट्स को ये पावर नहीं दी कि वो अपने आप को सेपरेट करें फ्रॉम द कंट्री, हेंस वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड ऑल्सो नोन एज द indestructible union of destructible states. We can destruct, we can alter, we can diminish, we can add, we can establish, we can remove, we can do that, any of these states. All right, indestructible union of the destructible states. Moving forward, आर्टिकल इंडिया के अंदर कौन कौन सी टेरिटरीज आती हैं ये देख लीजिए। भारत की खुद की टेरिटरीज के अंदर किसको किसको इंक्लूड किया जाएगा, द टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है, या कोई भी ऐसी टेरिटरी जो हमने अक्वायर करी है। मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिकल 2 यहाँ पे बात करता है एडमिट और एस्टैब्लिश करने की, एडमिट और एस्टैब्लिश करने की, यानी कि वो चीज़ जो पहले से भारत के अंदर एस्टैब्लिश्ड या एडमिटेड नहीं थी उसको, यानी कि आप बाहरी किसी सेटलमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, एग्जाम्पल फ्रेंच या पोर्टुगीज सेटलमेंट, तो पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट्स, एस्टैब्लिश और एडमिट दोनों की पावर दी गई आर्टिकल 2 के अंदर। हाउ कैन आर्टिकल 2 बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम आर्टिकल 3? हाउ कैन द आर्टिकल 2 बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम आर्टिकल 3? यू शुड नो दैट आर्टिकल 2 कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम आर्टिकल 3 with by the same
power lies in the parliament only. The same power lies in the parliament, but the difference here is that there you are incorporating the territories which are outside India. But here in Article 3, what is the difference? The difference here is that it is the parliament's power to form a new state. एक नए स्टेट को फॉर्म करने की पावर दी गई है. कैसे? जैसे अगर आप बाउंड्रीज को अल्टर कर रहे हो, किसकी? एग्जिस्टिंग स्टेट्स की. आप समझ रहे हो पॉइंट को? जैसे उत्तराखंड और यूपी जो है वो पहले एक हुआ करता था. यू गेटिंग माय पॉइंट? यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से आपने ऑल्टर कर दिया, 2 स्टेट्स बना दिए. एग्जिस्टिंग स्टेट्स के अंदर अगर आप चेंजेस कर रहे हो, सो इट इज द पार्लियामेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. रिमेंबर दैट. मूविंग फॉरवर्ड. अब जैसा कि आप जानते हो अक्टूबर 3, 2019 को क्या हुआ? अक्टूबर 31, 2019 को क्या हुआ? जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेट माना गया था. अच्छा, ये चर्चा में भी रहा है, अभी विषय भी चर्चा का है, क्योंकि एक पिटिशन फाइल करी गई सुप्रीम कोर्ट में कि भाई काइंडली ये जो एब्रोगेशन हुआ था आर्टिकल 370 का, उसके ऊपर कुछ बात करी जाए, उसके ऊपर कुछ चर्चा करी जाए, उसके ऊपर देखा जाए, सुनवाई होनी चाहिए उस बात की. तो एक चीज़ आप क्लियर रखिएगा अपने दिमाग के अंदर कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस था, जो स्टेटहुड से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि पहले वो स्टेट था, अब यूटी का स्टेटस दिया गया, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो कम हो जाती हैं यूटी के अंदर. तो उस पर कंसिडर करने के लिए कहा है, लेकिन ये कहा कि एब्रोगेशन ठीक था, उस चीज़ को मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने. और अब क्या हुआ? 2 चीज़ें याद रखिएगा. अभी करेंटली क्या है? 28 स्टेट्स और 8 यूटीज हैं आपकी. अब ये जो यूटीज है, दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली का मर्जर हो जाता है, और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूटीज बना दी जाती हैं. इनका मर्जर जो है, ये मर्जर दिसंबर 3, 2019 में हुआ, और ये अक्टूबर 31, 2019 में होता है. दोनों की इनकी इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर की, लेकिन लद्दाख जो यूटी बनी ये एलजी के द्वारा गवर्न होती है. ध्यान रखिएगा इस चीज़ को. मूविंग फॉरवर्ड. अब देखिए, हम लोग पार्ट 2 के अंदर बात करते हैं सिटीजनशिप की. और सिटीजनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्रेंड्स, just because of the simple fact that the perks, the benefits which are being achieved by the citizenship. वोटिंग राइट्स तो चलिए ठीक है, उसके बाद भी एक सिटीजन होना किसी कंट्री का अपने में एक बड़ी बात होती है. तो सिटीजनशिप हमेशा एक बड़ा इशू रहा, और ये पार्ट 2 के अंदर डेल्ट है. पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल्स 5 से लेकर के 11 तक के इससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए. मैं बता दूं, आर्टिकल 5 में बताया गया है कि कमेंसमेंट, जब संविधान कमेंस हुआ, शुरुआत हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, तब वहां पे हम सिटीजन किसको मानेंगे. उसके बाद आर्टिकल 5 और 6 के अंदर पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कि वो लोग जो इंडिया से पाकिस्तान गए, जो पाकिस्तान से इंडिया आए, उसके बाद आप देखने मिलेगा जो इंडिया से पाकिस्तान गए 6 और 7 के अंदर, तो वो दोनों प्रोविजंस तो अब रेलेवेंस उतनी नहीं रखते हैं. फिर आर्टिकल 8 के अंदर आपको पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में दिया गया. आर्टिकल 9 के अंदर दिया गया है कि अगर कोई वॉलंटरीली अक्वायर कर रहा है सिटीजनशिप किसी और कंट्री की, तो आप इसके माध्यम से सिटीजनशिप नहीं पा पाओगे. 10 के अंदर कहा गया कंटिन्यूंस रहेगी आपकी इंडियन सिटीजनशिप की, मानी जाएगी इस पार्ट के हिसाब से. और 11 में दिया गया है पार्लियामेंट चाहे कोई लॉ बना सकती है. उसी के चलते पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट बनाया 1955 का, और जिसमें 2019 में अमेंडमेंट हुआ था कोविड से पहले, तो बड़ा चर्चा का विषय रहा. ये सारी चीज़ें हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कमेंसमेंट पे हम सिटीजनशिप किसको देंगे, किसको मानेंगे. तो सिटीजनशिप की बात करी जाए तो एवरी पर्सन, हर एक इंसान को कमेंसमेंट के टाइम पे वो जो डोमिसाइल्ड है भारत के अंदर, उसका जन्म हुआ भारत के अंदर, या फिर उसके किसी पेरेंट्स का जन्म होता है भारत के अंदर, या फिर वो भारत के अंदर डिसाइड कर रहा है 5 साल पहले से, यानी कि 1945 से पहले. कमेंसमेंट की जब भी बात आएगी तो आप क्या मानोगे? इट इज 26/01/1950. ये डेट है कमेंसमेंट की, ध्यान दीजिएगा. ऑलराइट, चलिए मूविंग फॉरवर्ड. अब आगे चलिए. सिटीजनशिप एक्ट की मैंने वर्णन किया था, इसको आप याद रखिएगा. रेड विथ आर्टिकल 11. ऑलराइट, 5 तरीके से बताया गया है: बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरी. माइंड यू. ऑलराइट, चलिए आगे आ जाइए. ये 5 तरीके बताए गए, इसमें पूरा एक प्रोसीजर होता है. पूरा रजिस्ट्रेशन में अलग तरीका होता है. डिसेंट में देखा जाएगा आपका लाइन जो चेन चलती आ रही है, फैमिली ट्री क्या है. बाय बर्थ में देखा जाएगा, बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हुए हैं,
चलिए आगे आ जाइए। अब सिटीजनशिप लूज कैसे होती है? बाय रेनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन, या फिर आपको आपकी सिटीजनशिप से डिप्राइव कर दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं, मान के चलिए आपने फ्रॉडलेंटली सिटीजनशिप ली थी, पता चलता है कि आपने इंड्यूसमेंट या थ्रेट के हिसाब से ऐसे कुछ भी मीडियम यूज करके आपने अपनी सिटीजनशिप ली थी, तो ऐसे केसेस में सिटीजनशिप आपकी जा सकती है। आगे चलिए, आ जाइए हमारा, आपका, हम सबका, एग्जामिनर का, सभी का फेवरेट फंडामेंटल राइट्स। So fundamental rights are divided basically in 6 basic rights we are having under part 3rd, which are further divided into various other rights. So firstly we talk about right to equality, the basic, the many times quoted by the courts, also a very important article, very important right actually. Secondly we have the right to equality. Along with that we have the right to freedom or the liberty, freedom of liberty. Then we have the right against exploitation. Then we have right to freedom of religion, cultural and educational rights, and lastly right to constitutional remedies. All right, so these are the rights. अभी ये टाइम नहीं है कि आप इनको लिखो रटो, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए। आगे आ जाइए। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 की, जो यूजुअली यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यूजुअली जो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, इसकी शुरुआत होती है आर्टिकल 14 से लेकर के 18। ये जो है आपका फ्रीडम, ये आपको दिया है आर्टिकल 19 से लेकर के 22। एक्सप्लॉयटेशन आपको दिया है 23 और 24 में। रिलीजन आपको दिया है 25 से लेकर के 28 में। कल्चरल एजुकेशन आपको दिया है 29 और 30 में। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपको 32 के अंदर दी गई। तो 12 और 13 का क्या मैम? आप तो कहती हो फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर के 35 तक दी हैं, तो 12 और 13 को यूजुअली डिफरेंट सेंस में पढ़ा जाता है। हैं आपकी फंडामेंटल राइट्स ही, लेकिन नेचर डिफरेंट है। कैसे? आर्टिकल 12 डिफाइंस व्हाट इज स्टेट। सो दीज फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट दिस टर्म विच यू सी हियर, द टर्म स्टेट. So because they are enforceable against the state, it is very important to define, to decide what is a state. So Government of India, Government of State, Parliament, state legislatures, state legislative assemblies come under the definition of states, along with the local authorities and other authorities. So with Government of India, Government of States, Parliament, state legislatures, local authorities, you can see there is a certain definition. It has been determined and defined very clearly. But if we talk about the term other authorities, do you think it is defined? And wherever anything is not defined, the scope of interpretation also increases. I hope you get that point. So the courts have the scope of interpretation, thinking, taking into points which agency, which instrumentality, which authority can come under the definition of states, and when any instrumentality, any authority is coming under the definition of states, hence all the actions made by such authority can also be scrutinized, can also be challenged. And by what method it can be challenged? It can be challenged by the method of judicial review. Any law passed by the parliament or state legislatures, it can be checked. ठीक है, it can be checked as it is coming under the definition of state. So here we are talking about judicial review. Any law which was prevalent before the commencement of the constitution, that is 26th January 1950. Any law which came after the commencement of the constitution. Then article 13 clause 3 defines what is law and what is law in force. And lastly it talks about amendment, that any amendment made under article 368, any amendment made under article 368 cannot be called into the court. It cannot be called into the court. It is clearly stating that. I hope you're getting my point. So what does judicial review actually talks about? Judicial review किसके बारे में बात करता है? Judicial review, याद रखिएगा, हमेशा laws के बारे में बात करता है। ठीक है? It talks about the laws passed by the parliament or the state legislative assemblies, wherein if those laws are against the fundamental rights given under the part 3rd, then such laws can be declared void on the grounds being inconsistent with the fundamental rights. I told you the point that स्टेट को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्शंस जो सरकार, केंद्र सरकार, भारत सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं,
वो एक्शंस जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स के द्वारा, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं, उनकी कोई जवाबदेही है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए आगे आ जाइए। So just I told you, the pre-constitutional laws and post-constitutional laws. Pre-constitutional laws are void because they are given the benefit of doubt, because after coming of the constitution, after commencing of the constitution, it can be challenged. It can be challenged and it can be declared void ab initio on the ground that you knew that part third existed. Why did you make such law? Why did you make such law? But here they did not know that part third existed at the time they are making such a law, which is abrogating the fundamental rights, which is infringing the fundamental rights. Hence, it is declared void after such inconsistency which is existing with the fundamental rights. But here, you knew part third is existing. Why are you enacting a law which is inconsistent with the fundamental rights? So here, there is a lot of scope of discussion, and we are not here debating on Article 13, but we are just understanding the concept. All right, void and void ab initio. And also remember, there are certain doctrines also relating to it. I told you that such laws which are inconsistent with the fundamental rights, they are declared as void ab initio. But the point here, till what extent? Till what extent they will be declared as void? So here the basic question which has to be clear in your mind is, only that part of that law will be declared as unconstitutional or void which is inconsistent with the fundamental rights. So here comes the doctrine of eclipse and severability. Eclipse simply says that the provision which is inconsistent with the fundamental rights, it has been eclipsed. एक ग्रहण जैसा लग जाता है उसके ऊपर. लेकिन severability here talks about removing the provision. If we are removing the provision from the act, if we are severing the provision from the act, is the act valid? If the act is valid, then it can be easily removed. But if because of removing that particular provision from the act, if the basic nature of the act is destroyed, then the provision cannot be removed, and hence the full complete act has to be declared as void. So it basically talks about till what extent the law or the provision has to be declared as void. So here बीकाजी, एक्लिप्स में बीकाजी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. दीपचंद अंबिका मिल्स का भी केस आता है. ओवरशैडो होता है वो लॉ, पर्टिकुलर प्रोविजन, जैसे कि आप सेक्शन 303 आईपीसी का देख सकते हैं. मिट्ठू का केस था सुप्रीम कोर्ट का. इस केस में इसको ओवरशैडो किया गया कहीं ना कहीं. जैसे ही ये शैडो उसके ऊपर से हट जाएगा, लॉ जो है वो प्रोविजन जो है वो वैलिड हो जाएगा. वहीं पे अगर हम लोग सेवरेबिलिटी की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, बालसारा का केस और आरएमडीसी का केस. और ये कहीं ना कहीं ऑफेंडिंग प्रोविजन के सेपरेशन के बारे में बात करता है, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, जिस हद तक की वो इनकंसिस्टेंट है. चलिए आगे आ जाइए. नाउ हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट a law under Article 13 subclause 2. Actually Article 13 subclause 2 defines law. I just told you law and law in force. So basically is the big question arised in front of Supreme Court is that whether a constitutional amendment is law or not. Because if a constitutional amendment will come under the definition of law, hence it will come under the ambit of Article 13. But Article 13 subclause 4 clearly says that. Open your Bayer Act. Open your Bayer Acts and see under Article 13 clause 4 what is it written. It is clearly written, friends. It is clearly written that nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under Article 368. So if we are amending the constitution by the way of Article 368, then it cannot be judicially reviewed. That it is clearly stated under Article 13 subclause 4. So the question here is whether a constitutional amendment is law. So firstly this question was raised in the case of Shankari Prasad. And in Shankari Prasad's case, it was said no, a constitutional amendment will not come under the definition of law. And similar stand was held in the case of Sajjan Singh. In Sajjan Singh's case also it was said that constitutional amendment will not come under the definition of law. Position here now changed in the landmark judgment of I.C. Golaknath. In I.C. Golaknath's case, it was clearly said, yes, the constitutional amendment will come under the definition of law, hence it can be judicially reviewed. All right, no issues.
Now the main issue was settled down in article in the year 1973 in the case one and the Bharti case. In the case one and the Bharti case, wherein the question again arose, various amendments were made, the 24th, 25th amendment, all the amendments were challenged in the case one and the Bharti case. So the question here, main question here was कि भाई क्या एक संवैधानिक संशोधन जो हो रहा है ये लॉ की डेफिनेशन के अंदर आएगा? तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया कि नहीं भाई, पार्लियामेंट की पूरी पावर है. सो हियर इन अ सेंस इट ओवररूल्ड गोलकनाथ's केस, but here it somehow enhanced or somehow strengthened the provision of the judiciary. The law laid down for the judiciary, the judicial review scope of judiciary and the basic power of the judiciary has been strengthened by this case. How? मैं बता दूं आपको इस प्रकार से, क्योंकि केशवानंद भारती केस में कहा गया कि जी हाँ, संसद पार्लियामेंट की पावर है, वो चाहे तो पूरे संविधान को अमेंड करे, बस वो बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकता. पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करेगा. ये चीज बड़ी चीज थी जो केशवानंद भारती केस में ले डाउन किया गया. तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया जा रहा है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं. जैसे अभी हाल ही में जीएसटी को चैलेंज किया गया था, क्या जीएसटी वैलिड था, मतलब ठीक था या नहीं था. तो ये सारी चीजें हो सकती हैं. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ के कैटेगरी के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा. अब देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर तो हर किसी चीज को डिक्लेयर कर दिया गया है. सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, प्रियम्बल, सब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होगा. केशवानंद भारती केस में प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया. Are you getting my point? So, in a way, Parliament has been given its power. Parliament restored its power in Keswanand Bharti case. Now it has been restricted by the basic structure. All right, no issues. उस टाइम पे लग रहा होगा अरे कुछ नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे करके उसका स्कोप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गया है. पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए तुरंत उसको चैलेंज कर सकते हो आप. आगे आ जाइए. अब हम लोग इक्वालिटी की बात करेंगे. आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक की दिया है. इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का जो बेसिक प्रिंसिपल आर्टिकल 14 में देखने को मिलेगा. डिस्क्रिमिनेशन का दो प्रोविजंस है, 15 और 16 दोनों. इनको हम देखेंगे. अनटचेबिलिटी और टाइटल्स राइट टू इक्वालिटी के अंदर दिया गया. उसके बाद आर्टिकल 14 की बात करेंगे फ्रेंड्स. आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव सेंस का फ्रेज है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एक पॉजिटिव फ्रेज है. इक्वालिटी बिफोर लॉ हम लोग ने यूके से लिया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हमने यूएसए से लिया. इक्वालिटी बिफोर लॉ बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में एप्लीकेशन करता है लॉ की. कहता है हम किसी को नहीं देखते, लॉ सबके ऊपर हम बराबरी से लागू करेंगे. नो वन इज अबव द लॉ. ठीक है, तो ये चीज कहते हैं. साथ ही साथ कहते हैं देयर इज एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज. सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होगा लॉ, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज करता है. रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यहीं पे आता है. ये रिकॉग्नाइज करते हैं कुछ डिसेबिलिटीज को कि हाँ, समाज के अंदर कुछ डिसेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जो फाइनेंशियल डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, सोशल हो सकती हैं, कल्चरल हो सकती हैं. तो यहाँ पे कहते हैं कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक. वो लोग जो सिमिलरली लिंक्ड हैं एक दूसरे से, उनको हम एक तरह से उनको हम निकाल के अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, और ऐसा मना नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. ठीक है, दोनों चीजें आर्टिकल 14 के अंदर दिया गया है. द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन. ठीक है, चलिए आगे आ जाइए. रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी यहीं पे हमें देखने को मिलेगा, जो हमने एवी डाइसी की बुक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1885 से लिया. 3 चीजों की बात करी गई थी इस बुक के अंदर. सबसे पहले एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, दैट इज द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया. दूसरी चीज इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने आर्टिकल 14 के अंदर डाला. प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ये चीज हमने एक्सेप्ट नहीं करी. क्यों हमने एक्सेप्ट इसीलिए नहीं करी, क्योंकि हम एज अ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा फ्रेम हुआ वो किसी जजमेंट से तो बना नहीं, कोर्ट्स के द्वारा तो बनाया नहीं गया. हम किसी जजमेंट के ऊपर तो बेस नहीं थे कि भाई कोर्ट के इतने सारे डिसीजंस आए, उसके बाद लोगों ने मिलके कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम किया. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके लिए बनी थी, उससे बना. तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे वहाँ लीगल स्पिरिट का प्रीडोमिनेंस था इस वजह से संविधान बना, नहीं. ठीक है, तो ये हमने एक्सेप्ट नहीं करा, ये दोनों हमने एक्सेप्ट करा. और इक्वालिटी बिफोर लॉ को तो हमने आर्टिकल 14 के अंदर डाल दिया. आगे आ जाइए. 15 की बात करेंगे. बड़ा मजेदार आर्टिकल है 15.
क्लॉज 1 यहाँ पे कहता है 5 ग्राउंड्स देता है, कहता है इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉज 2 कहता है कि भाई इन ग्राउंड्स पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे अगर किसी, मतलब ये स्टेट और सिटीजन दोनों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि भाई अगर किसी को पब्लिक एंटरटेनमेंट की कोई चीज़ यूज़ करनी है, कुआं यूज़ करना है, नहाने जाना है बेदिंग घाट पे, वाराणसी में बहुत सारे घाट्स हैं, इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक बात। क्लॉज 3 आते आते पलट गया, क्लॉज 3 आते थे कहा कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, किसके लिए, विमेन और चिल्ड्रन के फेवर में डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। अरे भाई अभी तो कहा था कि सेक्स के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, अब क्यों करने लगे, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ये एक एफर्मेटिव एक्शन है जो लिया जा सकता है स्टेट के एंड से, हेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विमेन और चिल्ड्रन के लिए क्लॉज 3 के अंदर डाला गया, ठीक है। क्लॉज 3 तक की आर्टिकल 15 ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा था, क्लॉज 4 इंसर्ट किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। एक्चुअली केस था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराईराजन का केस था, और इसके अंदर रिजर्वेशन कर दिया गया था, और मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर उसको चैलेंज किया गया जब सुप्रीम कोर्ट में 1951 आते आते, मतलब 1 साल के अंदर अंदर ये सारे इश्यूज आ गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, वो ऑर्डर मना कर दिया, आप क्यों आप ऐसे कैसे कर सकते हो, कास्ट के ग्राउंड पे, कास्ट के ग्राउंड पे आप कैसे रिजर्वेशन कर सकते हो, कम्युनिटी को कैसे डिवाइड कर सकते हो। तो उसके चलते आप जानते हो जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में टसल चलता रहता है, पार्लियामेंट ने आर्टिकल 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्लॉज 4 को ऐड किया, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ये जो सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनके लिए कहा कि केवल और केवल एडवांसमेंट किया जाएगा, इसके लिए प्रावधान डाला, कोई बात नहीं। उसके बाद क्लॉज 5 इंसर्ट किया 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, क्यों, एडमिशन स्पेसिफिक एक लॉ डालना था, प्रोविजन डालना था, तो इन्हीं ऐसी BC शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एडमिशन के मामलों में रिजर्वेशन किया जाएगा, ये यहाँ पे डाल दिया इन्होंने क्लॉज 5 के अंदर। और लास्टली EWS तो आप जान ही रहे हो 10% रिजर्वेशन जो चल रहा है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट 15 आर्टिकल 15 के अंदर स्टेट ऑफ मद्रास चंपाकम दुराईराजन के केस और अशोक कुमार ठाकुर का केस, दोनों याद रखना है आपको। अब रिजर्वेशन की बात करी जाए फ्रेंड्स, तो हम लोग फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो बनाया गया था उसका नाम था काका कालेकर कमीशन, याद रखिएगा उसको। उसके बाद सेकंड जो बनाया गया वो BP मंडन जी के अंदर बनाया गया, जिन्होंने कहा कि भाई 3743 कास्ट हैं, 3743 कास्ट हैं, और कहा कि हम 27% रिजर्वेशन दे सकते हैं, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट कमीशन जो बनाए गए, आगे चलिए। उसके बाद मंडल कमीशन 1979 में जो बनाया गया था, इससे रिलेटेड जो चर्चा हुई, आइए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, 4 सवाल थे, क्या आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 का, कास्ट क्या सोल क्राइटेरिया हो सकता है रिजर्वेशन देने के लिए, कितनी सीट्स को रिजर्व किया जाएगा, रिजर्वेशन क्या प्रमोशन में भी दिया जाएगा, 9 जजेस की बेंच बैठी थी, 9 जजेस की बेंच बैठी थी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। देखिए आइए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, कहा कि भाई रिजर्वेशन इन प्रमोशन परमिसिबल नहीं है, सिर्फ 5 साल के लिए हम अलाउ कर देंगे। दूसरी चीज कही कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी हम अलाउ करेंगे, लेकिन 50% की लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, कास्ट जो है वो सोल क्राइटेरिया हो सकता है अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं। और चौथी चीज कही कि मोर बैकवर्ड क्लासेस का एक क्लासिफिकेशन और कर दिया, मोर बैकवर्ड क्लासेस। चलिए आगे आ जाइए। उसके बाद इन सारी चीज़ों को जो है M नागराज के केस में चैलेंज किया गया 2006 में। और इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्या हुआ क्या था। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 क्लियरली इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी होगी इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड अपॉर्चुनिटी के मैटर्स में, एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा। और इसमें 7 ग्राउंड्स दिए गए हैं। आर्टिकल 15 में आपने देखा 5 ग्राउंड्स थे, इसमें 7 ग्राउंड्स हैं। आई होप मुझसे मिस ना हुआ हो, राइट। तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेसिडेंस, 7 ग्राउंड्स हैं इसके अंदर। और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये क्लियरली कहता है आर्टिकल 16 का क्लॉज 2, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इन ग्राउंड्स पे। और पार्लियामेंट चाहे तो रेजिडेंस के ग्राउंड पे लॉ बना सकती है कि भाई हम वो लोग जो शायद एम्प्लॉयमेंट में नहीं है इंडियन स्टेट से, जैसे मणिपुर स्टेट से इतने लोग एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, तो आपके लिए लॉ बनाया जा सकता है, आप जो है पर्टिकुलरली इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये पार्लियामेंट कर सकता है। क्लॉज 4 अगेन यहाँ पे एडवांसमेंट की बात करता था, क्लॉज 4A ऐड किया गया, क्लॉज 4A ऐड किया गया रिजर्वेशन इन प्रमोशन 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। उसके बाद
क्लॉज 4A के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन डाला रिगार्डिंग कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी 85th अमेंडमेंट से। क्लॉज 4B अनफिल्ड वैकेंसी सेपरेट क्लास होगी, 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से डाला। और आर्टिकल 335 में अगेन शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स के लिए प्रोवाइजो ऐड किया, जो कहीं ना कहीं कहता है कि अगर मैक्सिमम जो आप देखते हो ना वो जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, जनरल की अलग नंबर होते हैं, SC के अलग नंबर होते हैं, ST के अलग नंबर होते हैं, तो लोअरिंग इन द मार्क्स ये आर्टिकल 335 के प्रोविजो में डाला गया। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स थे। इन सारे अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया था एम नागराज के केस में। कोर्ट ने इन सारे अमेंडमेंट्स की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया और कहा 3 रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के मैटर्स के अंदर। पहली चीज, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि बैकवर्डनेस है या नहीं आपकी पर्टिकुलर कास्ट की या कम्युनिटी की। दूसरी चीज आपको ये दिखानी पड़ेगी कि जो सर्विसेज है उनके अंदर आपका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, सर्विसेज या एडमिशंस के मैटर्स के अंदर, और पर्टिकुलरली सर्विसेज के मैटर्स के अंदर ओवरऑल एफिशिएंसी जो एडमिनिस्ट्रेशन की है, जो उस पर्टिकुलर जहां पे आप सर्विस देने जा रहे हो उनकी एफिशिएंसी मेंटेन रहेगी। ये सारी चीजें थी एम नागराज के केस में। ठीक है, याद रखिएगा 2018 का जर्नैल सिंह का केस भी आया था और इनवैलिड डिक्लेयर किया है जर्नैल सिंह के केस में। रिमेंबर दिस। रिमेंबर दिस केस। ऑलराइट, चलिए आगे आ जाइए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक दिया गया है। आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम 6 फ्रीडम्स दिए गए हैं। 20 में जब आपको कन्विक्ट किया जा रहा है ऑफेंसेस के लिए 3 प्रोटेक्शंस दिए गए हैं। 21 में तो आप जानते हो ब्लैंकेट आर्टिकल है। 21A एजुकेशन से रिलेटेड राइट्स देता है और 22 अरेस्ट एंड डिटेंशन के मैटर्स के अंदर इसमें PD लॉज भी आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रीडम ऑफ प्रेस की। कहाँ दिया गया? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के 1A के अंदर। ये इम्प्लाइड है, एक्सप्रेसली नहीं दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 केसेस हैं इससे रिलेटेड, बेनेट कोलमैन, साकल पेपर्स लिमिटेड और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। इसके अंदर क्या दिया गया? इसके अंदर बेसिकली यही दिया गया है कि आप कितना हद तक की प्रेस को लिमिट कर सकते हैं, क्या उनके पेजेस, न्यूज़पेपर के क्या पेजेस को लिमिट किया जा सकता है, क्या उनके प्राइसेस को फिक्स किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं लिमिटेशंस लगाई गई। साथ ही साथ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, आपको जानना चाहिए। केस पुट्टस्वामी का केस, अगेन यू कैन रीड आउट लाइवलीहुड, शेल्टर, वी ऑल नो, एंड अडल्ट्री, होमोसेक्सुअल एक्ट्स, नवतेज सिंह जौहर का केस, और अभी जो सुप्रियो वर्सेस सुप्रिया चक्रवर्ती का जो केस है उसको याद रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जहां पे मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने मैरिज के अंदर राइट देने के मैटर्स में। आगे देखिए, उसके बाद ये कुछ और केसेस हैं जिनको आप देख सकते हैं, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं। आर्टिकल 21A आपको पता होना चाहिए, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने इंसर्ट किया, एक पॉजिटिव राइट की राइट है। और इससे पहले स्पेसिफिक प्रोविजन आर्टिकल 45 के अंदर दिया गया था, एजुकेशन से रिलेटेड राइट्स थी। ऐसा नहीं था 21A से पहले हमें राइट टू एजुकेशन नहीं मिला हुआ था, लेकिन ये 45 से गवर्न होता था। और इसके चलते एक एक्ट भी बनाया गया, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू कंप्लीट एजुकेशन एक्ट 2009। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। मोहिनी जैन, उन्नीकृष्णन, TMA पाई। मोहिनी जैन के केस में कहा कि एजुकेशन हर एक लेवल पे एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, हाई कैपिटेशन फी इलीगल है, और एजुकेशन कमोडिटी नहीं है, और इसकी कोई पर्टिकुलर एज डिटरमाइन नहीं करी। मोहिनी जैन के केस में जैसे अभी हमें 6 to 14 तक की एज की फ्री एजुकेशन मिलती है, मोहिनी जैन के केस में कहा हर लेवल पे होनी चाहिए फ्री एजुकेशन। हमारे पास लेकिन इतना पैसा नहीं है कि हम हर एजुकेशन हम हर फील्ड में दे पाए। तो उन्नीकृष्णन के केस में क्लियरली कहा गया राइट टू एजुकेशन हम लिमिट कर रहे हैं 6 to 14 ईयर्स, ये एक फंडामेंटल राइट होगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मोहिनी जैन को ओवर रूल किया कि भाई हर एक एज को देनी चाहिए, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस ले डाउन करे, यानी कि कहा कैपिटेशन फी चार्ज करी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि इलीगल है, लेकिन हाँ कुछ लिमिटेशंस लगाए। अगेन TMA पाई के केस में सेटिंग अप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसको हम एक ऑक्यूपेशन मान सकते हैं, ये कहा गया। चलिए आगे आ जाइए। आर्टिकल 20 के अंदर हम लोग पहले एक चीज देख लेंगे, उसके बाद 22 की तरफ बढ़ेंगे। 20 आर्टिकल 20 की बात करें, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, 3 चीजें यहाँ पे दी गई हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले योर रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनलाइजेशन, रूल अगेंस्ट डबल जियोपार्डी और सेल्फ इनक्रिमिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनलाइजेशन यानी कि अगर आज 2020 को अगर मुझे किसी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दी जा रही है 2020 में, तो ऐसा नहीं कि
मान के चलिए 2020 के जनवरी में हमें पनिशमेंट दी गई, तो फरवरी में जाके अगर अमेंडमेंट किया और इसकी सज़ा को बढ़ा दिया, तो आप मेरी पनिशमेंट जो मुझे आपने कन्विक्ट कर दिया है उसके बाद आप मेरी पनिशमेंट को भी बढ़ा दें, नहीं, रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनलाइजेशन नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ ये साथ ही साथ यहाँ पे ये कहा गया कि मान के चलिए अगर 2020 की जनवरी में मुझे सज़ा दी गई, फरवरी में एक अमेंडमेंट पास किया गया और कहा 3 साल की सज़ा जिसको जिसको दी गई उसको 1 साल की सज़ा दे दीजिए गई, या अमेंडमेंट कर दिया गया है किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के पॉइंट पे, तो ऐसे में अगर कम करनी है सज़ा, घटानी है तो घटाई जा सकती है। इट टॉक्स अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनलाइजेशन। मूविंग फॉरवर्ड, डबल जेओपार्डी, आप इसको सेक्शन 300 सीआरपीसी के साथ भी लिंक करके पढ़ सकते हैं। अगेन, किसी भी इंसान को जिसको प्रोसिक्यूट और पनिश कर दिया गया किसी ऑफेंस के लिए, उसको फिर से प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं किया जाएगा फॉर द सेम ऑफेंस। ऑल राइट। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन तो आपको पता होना चाहिए, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मैंने खुद ही ऑफेंस किया है और मुझे ही अगर कंपेल किया जा रहा है मेरे खुद के अगेंस्ट एक एविडेंस देने के लिए, तो वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए ये मुझे बताना था आपको। 22 पे आ जाइए। 22 इसके अंदर क्लॉज 1 और 2 को अगर आप देखेंगे तो कुछ 4 राइट्स दी गई हैं। पहले तो आपको अगर कोई अरेस्ट करने के लिए आएगा तो आपको उससे बोलना पड़ेगा कि आपको इन्फॉर्म करे कि भाई क्या ग्राउंड क्या है अरेस्ट के। दूसरी चीज़, मेरे पास लॉयर होना चाहिए। उसके बाद मेरे पास मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करा जाए मुझे 24 आवर्स के अंदर। कुछ प्रोविजन इसमें सीआरपीसी में भी दिए गए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद आर्टिकल 22 आपको ये पता होना चाहिए। आर्टिकल 22 के जो अभी ये 4 राइट्स देखे आपने, ये हर किसी को नहीं मिलते। वो लोग जो एलियंस हैं, जो भारत के एनिमी एलियंस हैं, उनको नहीं दिए ये राइट्स। साथ ही साथ वो लोग जो पीडी लॉज के अंदर अरेस्ट किए गए, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर अरेस्ट किए गए, उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो लोग पीडी लॉज के अंदर अरेस्ट किए गए उनको आप 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते जब तक एक एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट नहीं आती है। साथ ही साथ उन लोगों को जिनको पीडी लॉज के अंदर आपने अरेस्ट किया, उनको आप कम्युनिकेट करेंगे कि क्या ग्राउंड्स हैं। साथ ही साथ उनके पास राइट होगा अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। और अगर आप चाहें तो अगर ग्राउंड्स को कम्युनिकेट नहीं करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए कि आपने अगर ग्राउंड्स को उनको कम्युनिकेट नहीं करा। और एडवाइजरी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्लियामेंट के भी कई सारे मैटर्स में पावर आती है आर्टिकल 22 के अंदर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, 3 months का टाइम पीरियड इज इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, रिमेंबर दैट। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन का राइट है, यू शुड नो। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार, अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर यहाँ पे बैंड है, मना किया गया है। और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज सिर्फ और सिर्फ हजार्डस एम्प्लॉयमेंट्स के अंदर बैन किया गया, मना किया गया एक्चुअली। मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिकल 25 में कॉन्शियस प्रैक्टिस, प्रोपगेट एंड प्रोफेस एनी रिलीजन ऑफ योर चॉइस इफ यू डोंट वांट टू बिलीव इन एनी रिलीजन, दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड। 26 के अंदर मैनेज कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ओन और अक्वायर कर सकते हैं, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, ये कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस से क्या मतलब है, किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा कि आपको टैक्स देना पड़े और उस टैक्स से पैसे से किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड 28 टॉक्स अबाउट रिलीजियस वर्शिप एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। एक्चुअली रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि सरकारी स्कूल्स होते हैं, अगर सरकारी स्कूल है कंप्लीटली स्टेट के द्वारा बनाया गया, सरकार के द्वारा बनाया गया, क्या उसमें कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है? जी नहीं, नहीं दिया जा सकता। तो उसमें कुछ क्लॉजेस दिए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे आ जाइए। 25 we all know there are certain restrictions as well, that is public order, morality and health। इनके ग्राउंड पे आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो रिटेन नहीं रहता है। अदर देन दैट, मूविंग फॉरवर्ड, हियर टॉकिंग अबाउट 3 in fact important cases। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज मिर्जापुर, मोती कुरैशी कसाब जमात। slaughtering of cows on Bakra Eid is neither essential nor the part of religious ceremony। Ismail Farooqi case, mosque is not an essential part of religion of Islam and namaz can be offered anywhere, even in an open place। Church of God full gospel का केस था, religious prayers through loudspeakers are not essential element of any religion। All right, चलिए आगे आ जाइए। आर्टिकल 26
अगेन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को, हर एक सेक्शन को राइट दिया गया है। ये 4 राइट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस को रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए, मैनेज कर सकते हैं अपने अफेयर्स को मैटर्स ऑफ रिलीजन के अंदर, अक्वायर कर सकते हैं मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, एडमिनिस्टर कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। और अगेन आर्टिकल 28 के अंदर आप देख लीजिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे जो स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड है, established but has been established under endowment trust which requires that a religious instruction shall be imparted in such institution would be allowed। यानी कि अगर आप किसी ट्रस्ट और एंडाउमेंट के अंदर बनाए गए हैं तब वहां पे तो अलाउ किया जा सकता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। चलिए आगे आ जाइए। आर्टिकल नंबर 29 talks about minorities rights and article 30 talks about establishment and administration of education institution। तो आप जानते हो सिटीजन्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है माइनॉरिटीज़ का, और ये जो माइनॉरिटीज़ हैं फ्रेंड्स, इन माइनॉरिटीज़ को कुछ राइट्स भी दी गई हैं, जैसे कि वो अपने पर्टिकुलर कल्चर को, अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं एक्चुअली। वहीं पे इनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाने की भी राइट दी गई है, वो बना सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं खुद से। एएमयू, और एएमयू पे तो खैर बहुत सारी चर्चा है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन इस टाइम पे आपके लिए ये फ्रूटफुल नहीं होगा, जस्ट रिवाइज थिंग्स। ऑलराइट, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी टेरिटरी, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, आर्टिकल 29, ठीक है, तो वो उनके पास राइट होगा उसको कंजर्व करने का। दूसरी चीज, किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो स्टेट के द्वारा मेंटेन्ड है, स्टेट से एड लेता है रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के ग्राउंड पे, कि आपको एडमिशन मना कर दिया जाए। ये 4 ग्राउंड्स दिए गए हैं। आर्टिकल 30 पे आइए। आर्टिकल 30 कहता है जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ लैंग्वेज बेस्ड हो सकती है, रिलीजन बेस्ड हो सकती हैं, इनके पास एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का राइट है। और 1A इंपॉर्टेंट है, 1A 44th अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 30 के अंदर। ये कहता है कि कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जिसको आप एक्वायर कर रहे हो, जिनको आप कंपल्सरीली एक्वायर कर रहे हो, उसका अमाउंट जो है मान के चलिए अगर आप किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं तो आप इसको एग्जामिन करेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जिसको आप एक्वायर कर रहे हो उसका अमाउंट होना चाहिए, मतलब इन अधियरेंस टू द राइट गिवन अंडर क्लॉज 1, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कहीं ना कहीं आप उस राइट को। और क्लॉज 3 यहाँ पे कहता है, क्लॉज 2 एक्चुअली नो डिस्क्रिमिनेशन, जब आप ग्रांट देंगे यानी कि जब सरकार के द्वारा पैसा दिया जाएगा, एड दिया जाएगा किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को जो नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इन दोनों के बीच में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। चलिए, स्टेट नहीं करेगा एक्चुअली। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आप जानते हो, अगेन रिट्स के माध्यम से हमें अवेलेबल है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चरी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। 33 आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है, 34 मार्शल लॉ से रिलेटेड है और 35 पार्लियामेंट की पावर से रिलेटेड है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आपको पता होना चाहिए, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चरी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। को वारंटो अगेन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होता है। को वारंटो में पूछा जाता है कि भाई बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू होल्डिंग दिस ऑफिस। प्रोहिबिशन में एक्चुअली जो लोअर कोर्ट होता है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, उसकी प्रोसीडिंग को स्टॉप किया जाता है बाय दी सुपीरियर कोर्ट, रोक देता है कि भाई आप गलत प्रोसीड कर रहे हो। सर्चरी में यूजुअली क्वॉश कर दिया जाता है, जजमेंट आ जाता है, दोनों में स्टेजेस का डिफरेंस होता है। प्रोहिबिशन बिफोर द जजमेंट एंड सर्चरी आफ्टर द जजमेंट यूजुअली, तो जजमेंट को क्वॉश कर दिया जाता है बाय दी रिट ऑफ सर्चरी। उसके बाद मैंडेमस तो पब्लिक ड्यूटी होती है, पब्लिक राइट होती है, मान के चलिए मेरे बिजनेस करने की राइट है आर्टिकल 19 के अंदर, तो मैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे एक लाइसेंस इशू कर दीजिए, लाइसेंसिंग अथॉरिटी मना करती है, तो भाई उनकी पब्लिक ड्यूटी थी, उन्होंने मना करा, मैं कोर्ट जाके मैंडेमस इशू करा सकती हूँ कि भाई आप एक रिट ऑफ मैंडेमस से फला फला पब्लिक ऑफिसर को कहिए कि मेरे लाइसेंस को इशू कर दे। उसके बाद हेबियस कॉर्पस की बात करें तो ये इलीगल डिटेंशन के मैटर्स के अंदर इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, दीज आर द 5 रिट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 के अंदर दिया गया है, हमने आयरलैंड से इसको अडॉप्ट किया है, ये पता होना चाहिए आपको। 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस,
ये जो है ये आपको मिले हैं फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। ऑल राइट, याद रखिएगा। आगे देखिए, फिर गांधीन प्रिंसिपल्स में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत, वीकर सेक्शन का प्रमोशन होना चाहिए, प्रमोशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स का प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काव्स या अदर मिल्क एनिमल्स, ये दिया गया है। मूविंग फॉरवर्ड, कुछ लिबरल प्रिंसिपल्स हैं जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में दिया गया है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सेपरेशन होना चाहिए, आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस की जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करिए, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए। और इसको री केरला एजुकेशन बिल और मिनर्वा मिल्स के केस में कहा कि दोनों बहनें हैं और दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करती हैं, कोऑपरेट करती हैं, कोई एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करती हैं। देयर हैज टू बी अ हार्मनी होनी चाहिए, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन द टू। ऑल राइट, चलिए आगे आ जाइए। अब हम लोग बात करेंगे यूनियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट 5। पार्ट 5 हैज 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स हैं, और उन 5 चैप्टर्स में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पे अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसके अंदर प्रेसिडेंट, पीएम, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बाकी सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन यूनियन किस प्रकार से डिवाइडेड है, जैसे सबसे पहले एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया गया है, उसके बाद पार्लियामेंट के बारे में दिया गया है, दैट इज लेजिस्लेचर, उसके बाद जुडिशरी के बारे में दिया गया है। तीनों ऑर्गन्स को कवर किया गया है यूनियन के अंदर। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रेसिडेंट की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 52 के अंदर दिया गया है, 53 के अंदर इसके एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताया गया है। 52 माइंड यू एक डिक्लेरेटरी आर्टिकल है जो बताता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताता है कि जितने भी डिफेंस फोर्सेज हैं, इंडियन आर्मी, वो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये प्रेसिडेंट के अंडर आती हैं। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर, 54 में इसके इलेक्शन के बारे में बताया गया है। कौन करेगा आपको पता होना चाहिए। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो करता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। इलेक्टेड मेंबर्स इसके अंदर भागीदारी लेते हैं ऑफ दी बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। यूटी सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी इसमें हिस्सा लेती हैं। मैनर ऑफ इलेक्शन बताया गया है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय सीक्रेट बैलेट, है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी एंड पैरिटी होनी चाहिए। 56 के अंदर टर्म बताया गया, अगेन 5 ईयर्स का होता है, री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है। क्वालिफिकेशन के अंदर आपको पता होना चाहिए, ही शैल बी क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके ना रखे हों, ये चीज़ है। साथ ही साथ सर्टन कंडीशंस हैं ओथ के बारे में 60 के अंदर दिया गया है। वैकेंसी जो है इनकी 6 महीने के अंदर अंदर जल्दी अगर मान के चलिए वो वेकेशन हो गया इनके ऑफिस का बाय रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, तो 6 महीने के अंदर अंदर वैकेंसी फिल कर ली जाएगी। आगे आ जाइए। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं, पहले फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। इनको नॉमिनल हेड कहा जाता है क्योंकि रियल हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और क्वालिफिकेशंस हमने देख ली हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। चलिए आगे आ जाइए। कैसे इलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड या नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज दिल्ली और पुडुचेरी के होते हैं, और बैलेट सिस्टम के माध्यम से, सीक्रेट बैलेट सिस्टम। आगे आ जाइए। इम्पीचमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 61 के अंदर दिया गया है, ध्यान से देखिए अब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट को। एक ही ग्राउंड होता है फ्रेंड्स, इनके वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही इनका इम्पीचमेंट होता है। सबसे पहले आइदर हाउस में चार्ज को प्रेफर किया जाता है, मैं हट गई हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। चार्ज को प्रेफर किया जाता है आइदर हाउस में, 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, इसमें ध्यान दीजिएगा प्रेसिडेंट को, और
होता क्या है, जैसे चार्ज प्रेफर किया जाता है तो वहां पे जो 1/4 मेंबर्स हैं टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, ये कहीं ना कहीं इसको साइन करते हैं। उसके बाद जैसे ही उस पर्टिकुलर हाउस जहां से इसको पास किया गया था 2/3 मेंबर्स उसको पास कर देते हैं, साइन कर देते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसको नेक्स्ट हाउस भेजा जाता है, इन्वेस्टिगेट करा जाता है बाय द अदर हाउस। अब जब 2/3 मेजोरिटी से उस पर्टिकुलर हाउस की पास हो जाता है, तब कहीं ना कहीं चार्ज क्योंकि इन्वेस्टिगेट हो गया है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट शैल स्टैंड रिमूव, लेकिन इस बीच प्रेसिडेंट के पास पावर होती है अपीयर करने की और अपने आप को रिप्रेजेंट करने की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पीचमेंट से रिलेटेड आर्टिकल 61 के अंदर दी गई हैं। आगे आ जाइए, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की बात करी जाए, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कहीं ना कहीं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है ऑफ द राज्यसभा, दैट इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इनके एक्स ऑफिशियो होने का जो प्रोविजन है वो 64 है। 65 में कुछ कंडीशंस में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज प्रेसिडेंट। 66 में इनके इलेक्शन के बारे में बताया गया है। 67 में इनके टर्म और रेजिग्नेशन के बारे में बताया गया है। वैकेंसी एज सून एज पॉसिबल इनकी फिल करी जाती है, इनके ओथ के बारे में बताया गया है, और किन सिचुएशंस में प्रेसिडेंशियल फंक्शंस को एक्सरसाइज करेंगे आर्टिकल 70 में बताया गया है। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे और पार्डनिंग पावर पे मेन फोकस हमारा रहेगा। प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है, कैन पार्डन, डिप्राइव, रिस्माइट, रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट द पनिशमेंट और सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट अ सेंट्रल लॉ। यहाँ पे स्टेट लॉ के अगेंस्ट अगर किसी को भी पार्डन देना है तो वो गवर्नर देते हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात हो रही है। प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ पे डेथ सेंटेंस को भी कम्यूट कर सकते हैं। ही इज द ओनली अथॉरिटी टू पार्डन अ डेथ सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे गवर्नर के द्वारा डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं किया जा सकता। अगर कोई स्टेट लॉ है जो डेथ सेंटेंस दे रहा है, द पावर टू ग्रांट पार्डन लाइज विद द प्रेसिडेंट, उस मामले में प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाती है। उसके बाद पार्डन की बात करी जाए तो कोर्ट मार्शल के मैटर्स में पावर होती है प्रेसिडेंट की, लेकिन गवर्नर के पास कोर्ट मार्शल्स के मैटर्स में पावर नहीं होती पार्डन ग्रांट करने की। आगे आ जाइए, उसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस की। आर्टिकल 123, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213 के अंदर, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्यों इशू करी जाती है, जब रिसेस होता है पार्लियामेंट का, उस बीच अगर कोई बहुत अर्जेंट मैटर आता है, इमीडिएट मैटर आता है, तो उसमें आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर, ये इनकी लेजिस्लेटिव पावर होती है। आगे आ जाइए, अच्छा यहाँ पे अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ही शुड बी क्वालिफाइड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। राइट ऑफ ऑडियंस होती है हर कोर्ट के अंदर, और एडवाइस देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स के ऊपर, ठीक है। वेरी वेरी, अभी आर वेंकटरमणी जो है हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। पार्लियामेंट आ चुका है, पार्लियामेंट के अंदर आप देखोगे बहुत सारी चीजें दी गई हैं, और पार्लियामेंट को आप लिंक करके पढ़ सकते हो विद द स्टेट लेजिस्लेचर। सिमिलर फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो दिए गए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा, सॉरी पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा को मिलके बनाता है। उसी प्रकार से अगर इनके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 स्टेट्स के अंदर है। 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में प्रोविजन है। 81 में लोकसभा, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर्टिकल 170 के अंदर। राज्यसभा में 238 मेंबर्स होते हैं स्टेट और यूटीज से। स्टेट और यूटीज से 12 नॉमिनेट करे जाते हैं बाय दी प्रेसिडेंट, 250 हो गए। 530 स्टेट से होते हैं, 20 यूटीज से होते हैं, 2 नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। तो ये जो है, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज से, जी हाँ, नॉमिनेट करे जाते हैं। तो ये अब हट चुका है इनका एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। सिमिलरली इनके रीएडजस्टमेंट सेंसस की बात करी गई है। ड्यूरेशन, राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है, लोकसभा 5 साल के लिए बनाई जाती है, जनरल इलेक्शंस होते हैं। क्वालिफिकेशंस, इनको आप लिंक कर लीजिएगा। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ओथ 25 साल की उम्र लोकसभा के मैटर्स के अंदर और 30 साल की उम्र राज्यसभा के मैटर्स के अंदर। उसके बाद सेशंस के बारे में बताया गया है। सेशंस क्या होते हैं, प्रोरोगेशन क्या होता है। प्रोरोगेशन इज द टर्मिनेशन ऑफ द सेशन। सम्मन कौन करता है, प्रेसिडेंट बुलाता है सेशंस को प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाए जाते हैं। एड्रेस और मैसेजेस, ये प्रेसिडेंट की पावर है। स्पेशल एड्रेस की, जैसे जनरल इलेक्शन होता है, हाउस फॉर्म होता है, हाउस मिलते हैं, तो प्रेसिडेंट उसको स्पेशल एड्रेस देते हैं। राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स अटॉर्नी, यहाँ पे इनके पास राइट टू वोट नहीं होता है, लेकिन प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंदर। उसके बाद वेकेशन ऑफ सीट्स,
कुछ कारणवश सीट्स को वेकेटेड माना जाएगा, मान के चलिए डबल मेंबरशिप हो गई है, दोनों हाउसेस के मेंबर हैं आप, या फिर एब्सेंस है आपका, है ना, आप 6 महीने तक की आप प्रेजेंट ही नहीं है 6 कंसेक्यूटिव सेशंस के लिए। उसके बाद मान के चलिए उसके बाद आप वेकेंट है सीट आपकी, रेजिग्नेशन दे दिया, उसके बारे में दिया गया डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 102 के अंदर दिया गया है। मान के चलिए अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, इंसॉल्वेंट हो गए आप, या फिर इंसॉल्वेंसी हो गई, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, या फिर आप मान के चलिए तो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं, या फिर आप अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से, या कोई भी चीज़ जो पार्लियामेंट कहती है, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। फिर डिसीजन कौन लेगा ये दिया गया है, पेनल्टी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, सैलरीज, बिल से रिलेटेड, जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन जो दिया गया है कि आप डिस्कस नहीं करेंगे, जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं किसी भी कोर्ट में नहीं लाया जाएगा वो। डिस्क्वालिफिकेशन इन सारे मैटर्स में है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, या लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, एनी प्रोविजन मेड बाय द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। चलिए आगे आ जाइए। अब इसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है जुडिशरी, और इसमें हम यूनियन जुडिशरी की बात करेंगे। आर्टिकल 124 दैट शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, रेजिग्नेशन भी उन्हीं को दिया जाता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जज ऑफ द हाई कोर्ट होने चाहिए, या फिर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years और एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 years। प्रेसिडेंट जो है किसी भी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को भी अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद इनका रिमूवल कैसे होता है, बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास बाय द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एट वोटिंग। ग्राउंड क्या है, मिसबिहेवियर, प्रूव मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे आप रिमूव कर सकते हैं। चलिए आगे आ जाइए। अब कोलिजियम और एनजेसी के बीच में डिबेट चलता रहता है। आप जानते हो कोलिजियम सिस्टम जो है इवॉल्व हुआ बाय द 4 जजेस केस और 3 जजेस केस, एक्चुअली 4 जजेस केस से तो इसको हटा ही दिया गया था 2015 के अंदर। तो ये सारे डिबेट जो है हाल ही में भी रही, हमेशा रही, और फाइनल कॉल ये है कि अभी भी कोलिजियम सिस्टम जो है वो प्रिवेल कर रहा है, और लॉ मिनिस्टर ने, एक्स लॉ मिनिस्टर ने भी उसको क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करा। तो कोलिजियम सिस्टम इज स्टिल प्रिवेलिंग, देयर आर 4 जजेस केस रिगार्डिंग दैट, और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के केस से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। एनजेसी 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने डाला था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन प्लीडिंग, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है प्लीडिंग के लिए, मतलब आप प्लीड नहीं करेंगे आफ्टर रिटायरमेंट। उसके बाद 125 में इनके सैलरीज के बारे में दिया गया है, एडहॉक जजेस के बारे में, जब कोरम नहीं होता है हाईकोर्ट जज को आप एडहॉक जज बना सकते हो, सीट इनकी दिल्ली में होगी। 126 में एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बताया गया है कि जब एब्सेंस हो या अनएबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस तो एक्टिंग चीफ जस्टिस को आप अपॉइंट कर सकते हैं। 128 में रिटायर्ड जजेस की भी अटेंडेंस को सिक्योर किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आगे आ जाइए, आर्टिकल 129 इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट बताता है इट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और हाई एविडेंशियरी वैल्यू होती है जो भी जजमेंट के द्वारा पास किया जाता है, और इसके अगेंस्ट कोई भी क्वेश्चंस नहीं पुट अप करे जाते हैं। और इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 129 के अंदर ये भी दिया गया है कि इट हैज द पावर टू कंटेम्प्ट फॉर द पनिशमेंट फॉर इट्स सेल्फ, ऑलराइट, फॉर पावर टू पनिश एक्चुअली फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इट्स सेल्फ। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, डिस्प्यूट अगर कोई है, क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट है ऑन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट डिपेंड्स, विच इज बिटवीन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट वर्सेस एनी स्टेट, या दो से अधिक स्टेट्स, ठीक है। और अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई डिस्प्यूट ऐसी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये ओरिजिनली स्पेशली ये स्पेसिफिक डिस्प्यूट है जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर्स जाते हैं, ठीक है। कुछ एक्सक्लूजन होते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के, जैसे कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अगर चलता है, या फिर अगर कोई ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, कोवेनेंट है, सनद है, ये एग्जीक्यूट किया गया है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, तो उसमें पावर नहीं होती है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के मैटर में नहीं जाता है। चलिए आगे आ जाइए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, सिविल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में, और स्पेशल लीव टू अपील भी होती है आर्टिकल 136 के अंदर, कि अगर भाई इन मैटर्स में एपेलेट पावर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो आपके पास स्पेशल राइट भी अपील करने का, स्पेशल लीव टू अपील। अगेन आर्टिकल 143 इंपॉर्टेंट, टॉक्स अबाउट द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट
जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट पे जो अराइज हो चुका है या लाइकली टू अराइज है, और वो क्वेश्चन पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, सुप्रीम कोर्ट बाउंड होते हैं। कोई भी ट्रीटी एग्रीमेंट कोवेनेंट या सनद है उस मैटर्स में, ठीक है, क्लॉज 2 के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद आर्टिकल 141 वी ऑल नो बाइंडिंग, सुप्रीम कोर्ट का सारे जजमेंट बाइंडिंग होते हैं ऑन ऑल दी कोर्ट्स इन द कंट्री। और 142 में टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर पेंडिंग डिक्री और ऑर्डर। उसके बाद हमारा जो बच रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, उसके बाद रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 245 से लेकर के 293 तक की दिया गया है। स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म होता है, लेकिन कुछ मैटर्स में ये यूनिटरी फीचर्स को भी अडॉप्ट करते हैं। 3 टाइप के रिलेशंस हैं, ये आप देख सकते हैं विद आर्टिकल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल। लेजिस्लेटिव रिलेशंस 245, 246 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 245 में पार्लियामेंट के पास पावर होगा लॉ बनाने का फॉर होल ऑफ इंडिया, और रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर को अपने स्टेट में लॉ बनाने की पावर दी गई है। सब्जेक्ट मैटर जो डिस्ट्रीब्यूशन वो दिया गया है वो आर्टिकल 246 के अंदर दिया गया है, और 7 शेड्यूल के अंदर दिया गया है जो 3 लिस्ट में डिवीजन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ये 3 लिस्ट में जो डिवीजन दिया गया है वो आपके आर्टिकल 246 के अंदर दिया गया और 7 शेड्यूल के अंदर दिया गया है, ठीक है। आगे आ जाइए। उसके बाद आर्टिकल 247 एडिशनल कोर्ट्स के बारे में बात करता है। 248 बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेसिडुअरी पावर के बारे में बात करता है, यानी कि वो सारी चीजें जो 7 शेड्यूल आर्टिकल 246 से कवर नहीं हो रही है वो हमें आर्टिकल 248 में देखने को मिलता है, राइट। यानी कि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे लॉ बनाया जा सकता है जो 7th शेड्यूल में नहीं दिया गया है, 7 शेड्यूल या आर्टिकल 246 के अंदर नहीं दिया गया है, ठीक है। सो रिमेंबर दैट पॉइंट, क्लियर। आगे आ जाइए। आर्टिकल 251 इनकंसिस्टेंसी की बात करता है, और ये जो इनकंसिस्टेंसी है ये इट इज रिगार्डेड विद आर्टिकल 249 एंड 250, ठीक है। आर्टिकल 249 या 250 के बीच में अगर कोई भी इनकंसिस्टेंसी है तो अगर आर्टिकल 249 और 250 के लॉज जो बनाए जा रहे हैं पार्लियामेंट के द्वारा उसके बीच में कोई इनकंसिस्टेंसी है तो इट इज बीन गवर्न्ड बाय आर्टिकल 251, और 254 बात करता है रिपग्नेंसी की, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर रिपग्नेंसी। अगर हम लोग आर्टिकल 254 की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है यूनियन लिस्ट पे, या मान के चलिए कॉन्करेंट लिस्ट का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ बनाया गया है कॉन्करेंट लिस्ट पे, और उसी सब्जेक्ट पे उसी टॉपिक पे मान के चलिए स्टेट लेजिस्लेचर के भी द्वारा लॉ बनाया जाता है, तो ऐसे में क्या सारी चीजें होंगी, ये आर्टिकल 254 के अंदर कवर्ड है, डेल्ट है। तो ये देखा जाएगा क्या प्रेसिडेंशियल असेंट दे दिया गया उस स्टेज पे, कौन ओवर पावर करेगा, ये आर्टिकल 254 के अंदर दिया गया। आगे आ जाइए। और कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं जो आप देख सकते हैं आर्टिकल 249 के अंदर, नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकता है पार्लियामेंट। आर्टिकल 250 इमरजेंसी के मैटर्स में लॉ बनाया जा सकता है। 252 के अंदर 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए इनके कंसेंट पे लेकिन लॉ बनाया जाता है। 253 इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस 256, 257, 258, 260, 261 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स माइंड यू। 256 यहाँ पे कंप्लायंस की बात करता है, स्टेट जो है यूनियन के दिए डायरेक्शंस को कंप्लाई करेगा और सारे डायरेक्शंस को जो है वो मानेगा। 260 एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, और 257 की बात करी जाए तो एग्जीक्यूटिव पावर हर एक स्टेट की इस तरीके से एक्सरसाइज करी जाएगी कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर को यहाँ पे डिमिनिश या डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ 258 की बात करी जाए, यूनियन की पावर है टू कन्फर पावर ऑन दी सर्टेन स्टेट्स,
ठीक है। तो आर्टिकल 257 में पावर है कि भाई कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द स्टेट इन सर्टेन केसेस, और 258 के अंदर जो पावर है, पावर ऑफ द यूनियन टू कन्फर पावर एक्स्ट्रा ऑन द स्टेट इन सर्टेन केसेस। तो ये दोनों ही आर्टिकल्स को आपको उस हिसाब से याद रखना है। मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिकल 262 बात करें अगर वाटर डिस्प्यूट्स की, तो यहाँ पे पार्लियामेंट जो है बाय लॉ यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल के मैटर्स में यहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है कि अगर कोई भी, जैसे यूजुअली क्या होता है ना, स्टेट साउथ में भी हमने देखा है स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होती है, वाटर डिस्प्यूट्स होती हैं, तो ऐसे में यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल के मैटर्स के अंदर लॉ बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, और इसके चलते इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट भी बनाया गया है। वाटर डिस्प्यूट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट मोर इंपॉर्टेंट इज इंटरस्टेट काउंसिल 263 के अंदर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, रिकमेंडेशन के मैटर्स के लिए प्रेसिडेंट जो है एक इंटरस्टेट काउंसिल बना सकता है, और सरकारिया कमीशन 1990 के द्वारा भी इसको रेकमेंड किया गया था। आगे आ जाइए, फाइनेंशियल रिलेशन, अगेन कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 266 के अंदर कंसोलिडेटेड फंड इंडिया और स्टेट्स दोनों के लिए जो है वो दिया गया है, और ये जो कंसोलिडेटेड फंड है इसके अंदर कोई भी जैसे पैसा आता है, कोई भी रेवेन्यू जो आप रिसीव कर रहे हो, कोई भी लोन जो आपने रेज किया हुआ है, कोई भी रीपेमेंट ऑफ लोन से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है वो इसके अंदर आता है, और कंटिजेंसी फंड के अंदर कोई भी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर वो यहाँ पे काउंट किया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 265 talks about taxes not to be imposed by except by the authority of law. No tax shall be levied or collected except by the authority of law. Moving forward, GST, again 101st Constitution Amendment Acts, one nation one tax, और इसके बारे में नॉट सो इम्पॉर्टेंट नाउ, क्योंकि अब तो इसको देख सकते हैं आप, जीएसटी 4 टाइप के जीएसटी होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और आईजीएसटी। पार्ट 13 की बात करी जाए, यहाँ पे ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स के बारे में दिया गया है, ये फ्री होंगे। आर्टिकल 302 के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स में जो है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं 302 से लेकर के 305। 303 के अंदर दिया गया अगर कोई डिस्क्रिमिनेटरी गुड्स हैं इनको नहीं बनाया जाएगा, यानी कि अगर कोई ऐसा गुड्स है जो मान के चलिए मेरे ही पर्टिकुलर एरिया में बनाया जाता है, तो आप ऐसे गुड्स को नहीं बनाएंगे या ऐसे गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा जो मेरे पर्टिकुलर एरिया की स्पेशलिटी है, ठीक है, एक्सेप्ट जब स्कैरसिटी ऑफ गुड्स हो। 304 में टैक्स प्लस रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करी गई है, ठीक है, और वैसे ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स शैल बी फ्री। चलिए आगे आ जाइए, अब हम लोग बात करेंगे सर्विसेज की। 308 से लेकर के 313 तक के इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। 315 से लेकर के 323 पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करते हैं, और सिविल सर्विस के मैटर्स के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, नो पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ यूनियन और एन ऑल इंडिया सर्विस और अ सिविल सर्विस ऑफ अ स्टेट और होल्ड्स अ सिविल पोस्ट अंडर अ यूनियन और अ स्टेट शैल बी डिसमिस्ड। उसको डिसमिस नहीं किया जाएगा, रिमूव नहीं किया जाएगा, या फिर उसको हटाया नहीं जाएगा बाय अथॉरिटी जो उनसे सबऑर्डिनेट है। तो यानी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी से सबऑर्डिनेट अथॉरिटी इनको ना तो रिमूव कर सकती है, ना तो इनकी रैंक को रिड्यूस कर सकती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 310 प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, और 311 जो आर्टिकल है वो इनको ये पावर देता है। No such person shall as aforesaid be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity. Moving forward, elections 324 very very important, election commission का गठन। No eligibility जो है रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के ग्राउंड पे आपको इनएलिजिबल नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आपको 326 के अंदर दिया गया है, और पार्लियामेंट की पावर 327 में दी गई है, 328 में स्टेट लेजिस्लेचर की पावर दी गई है, 329 में कोर्ट के ऊपर जो बार लगा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 329 इलेक्टोरल मैटर्स में बार टू द कोर्ट। आगे आ जाइए, ये इलेक्शन कमीशन के 3 मेंबर्स हैं। एक इलेक्शन कमिश्नर होते हैं चीफ इलेक्शन CAC, और इलेक्शन कमिश्नर अदर, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। अडल्ट फ्रेंचाइज, अब यहाँ पे जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो आर्टिकल 343 में दिया गया है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और हिंदी और इंग्लिश,
हिंदी को एक्चुअली 15 ईयर्स के लिए माना गया था, लेकिन अब अगेन इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड और अभी भी इसको इंक्लूड किया गया है। 345 टॉक्स अबाउट द स्टेट लैंग्वेज, और 348 से लेकर के 49 में लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स के बारे में बताया गया है, लॉज में क्या लैंग्वेज यूज़ करी जाएगी, ऑर्डिनेंसेस में क्या किया जाएगा वो दिया गया है। और आंध्र प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बनता है जो लिंग्विस्टिक बेस पे एक नया स्टेट बनाया गया था, फर्स्ट स्टेट टू बी मेड ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड। मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल डायरेक्टिव्स भी दिए गए आर्टिकल 350A के अंदर, 350B के अंदर, 351 के अंदर, ठीक है। इंस्ट्रक्शन मदर टंग में दिया जाएगा प्राइमरी स्टेज पे। 350 में दिया गया है प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। 351 में दिया गया है यूनियन की ड्यूटी होगी हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करें ज़्यादा से ज़्यादा और इसको एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बनाएं। आगे आ जाइए, उसके बाद ये लैंग्वेजेस से रिलेटेड जो 22 लैंग्वेजेस हमें दी गई हैं। सिंधी लैंग्वेज 1967 में 21वें अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करी गई, कई बार पूछा गया है। कोंकणी मणिपुरी नेपाली 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से बोडो डोगरी मैथिली संथाली को ऐड किया गया जो 2004 में आई। 6 लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल स्टेटस दिया गया है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। चलिए आगे आ जाइए। इमरजेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट जो है जब सेटिस्फाई हो जाते हैं कैबिनेट के द्वारा, जब डिसीजन आ जाता है राइटिंग में तो डिक्लेयर करी जाती है। ग्राउंड्स क्या होते हैं, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। और पार्लियामेंट चाहे तो ऐसे में स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकती है। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंशन में चला जाता है, राइट टू मूव टू द कोर्ट इज सस्पेंडेड एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिकल 356 फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताता है। और कब होता है, जब एडमिनिस्ट्रेशन किसी पर्टिकुलर स्टेट का कैरी डाउन नहीं हो सकता अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे आप आर्टिकल 365 को भी पढ़िएगा, ठीक है। गवर्नर की रिसिप्ट पे या जब प्रेसिडेंट को अदरवाइज लगता है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर ले लेता है, पार्लियामेंट की पावर जो है उनके स्टेट लेजिस्लेटर पे आ जाती है। 360 अगेन फाइनेंशियल इमरजेंसी ग्राउंड होता है जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट जो है वो थ्रेटन होता है, प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाता है सिचुएशन अराइज हुई है। इफेक्ट क्या है, यूनियन डायरेक्शंस जो है स्टेट को देता है, रिडक्शन हो जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस का, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आ जाइए, ये चार्ट आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, आप चाहें तो इससे तैयार कर सकते हैं अमेंडमेंट को, वो इमरजेंसी को। और लास्टली हमारा अमेंडमेंट बच रहा है जो इंपॉर्टेंट है, सिंपल, स्पेशल और स्पेशल विद रैटिफिकेशन। जैसे कि अगर कोई फेडरल प्रोविजन को अमेंड करना है तो उसमें रैटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सिंपल के बारे में आर्टिकल 368 में दिया नहीं गया है, सिर्फ इनके बारे में दिया गया है, सिंपल हम इन्फर करते हैं। चलिए आगे आ जाइए, और अब हम लोग लास्टली ये देख लेंगे शॉर्ट टाइटल कहाँ पे दिया गया है, 393 के अंदर दिया गया है, और 394 में कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज 394A और 395 रिपील्स, ठीक है। इसी के साथ हमने जो ब्रीफ आउटलुक था कॉन्स्टिट्यूशन का वो कवर कर लिया है, और डिटेल में भी हमारा एक लेक्चर पड़ा हुआ है वो आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर किसी भी पार्ट से रिलेटेड अगर आपको लेक्चर चाहिए वो भी पड़े हुए हैं। यूट्यूब पे आप फाउंडेशन की सीरीज देख सकते हैं और जुडिशरी की सीरीज देख सकते हैं। आगे आ जाइए, अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 394 कौन से आर्टिकल्स, ये देख लीजिए, जो इनफोर्स आ गए थे एट वंस, और रिमेनिंग प्रोविजंस जो हैं वो 26 जनवरी 1950 को आएंगे जो दिया गया है 394 में। आगे आ जाइए, इंडिया दैट इज भारत हम लोग देख चुके हैं, आर्टिकल 1 के अंदर दिया गया इट शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, वी शुड नो दैट। द सिस्टम ऑफ डुअल सिटीजनशिप कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, याद रखिएगा, यूएसए में। इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। ऑल राइट, वी आर नॉट द सिटीजन ऑफ मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वी आर ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया, याद ना, चक दे इंडिया। आगे आ जाइए, उसके बाद हु इज नॉट अ सिटीजन बाय डोमिसाइल, दोज हु आर बोर्न इन द टेरिटरी, दोज हु आर आइदर मदर और फादर, जी हाँ ये भी आएंगे बाय डोमिसाइल, दैट इज 26/01/1950 जो हम लोग ने देखा। दोज हु हैव बीन ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन द टेरिटरी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू हिज वर्क, जी नहीं, ये नहीं आते हैं, ये आते हैं 5 साल 1945 मैंने आपको बताया था, ठीक है। आर्टिकल 5, ये आर्टिकल 5 में दिया गया है। आगे आ जाइए, फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, अभी बताया, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया इज एम्पावर्ड टू एडमिट into the union or establish a new state, you should know that, parliament, article 2. Next,
Which of the following is not a relevant factor to decide whether an agency or instrumentality should be treated? मैंने आपको बताया था other authorities, और इसके अंदर कौन सा इन्होंने कहा is not a relevant factor? डीप एंड परवेसिव कंट्रोल देखा जाएगा. मोनोपोली स्टेटस कन्फर्ड, जी हाँ, यस देखा जाएगा. प्रॉफिट अर्निंग फंक्शन विच आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये देखा जाएगा. क्या आप पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंक्शंस कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्निंग एक ऐसी चीज है जो शायद रेलेवेंट फैक्टर नहीं होगा ये देखने का, ठीक है, कि ये इंस्ट्रूमेंटैलिटी है या नहीं. आगे आ जाइए. विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू? वी हैव जस्ट सीन आर्टिकल 13. आगे देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? याद रखिएगा दो चीजें हैं आर्टिकल 21 में, प्रोसीजर और दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ये यूएसए में था, हमने अडॉप्ट नहीं करा. यहाँ पे कोर्ट्स की पावर बड़ी ज़्यादा होती है, कोर्ट्स की पावर इनॉर्मस होती है. प्रोसीजर एस्टैब्लिश में कहीं ना कहीं आप लिमिटेड होते हो लॉ से, लेकिन ड्यू प्रोसेस अब धीरे धीरे आ चुका है. ये कॉन्सेप्ट आर्टिकल 21 के अंदर दिया गया. आगे आ जाए. विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन? 15 क्लॉज 3, विमेन एंड चिल्ड्रन. नेक्स्ट, द टर्म कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी इज मेंशन्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? Consequential seniority 4A, you should know that. Next, catch-up rule established by the Supreme Court relates to which of the following article? Again 4A. याद रखिएगा क्या होता है कैचअप रूल में. देखिए, जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन आ गया, जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन आया तो एक जनरल कैंडिडेट होता है, एक रिजर्व कैंडिडेट होता है. तो जब जनरल कैंडिडेट होता है, जब वो प्रमोशन पाता है, और जो रिजर्व कैंडिडेट है वो जब प्रमोशन पाता है, तो क्योंकि ये जो बेसिक डिफरेंस होता है इनके बीच में, तो ये कहा गया कि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी से अब क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी डाल दिया, तो ये जो रिजर्व कैंडिडेट है ये जाके जनरल कैंडिडेट के ऊपर बैठता है. लेकिन इससे पहले ये इशू आता था कि जो रिजर्व कैंडिडेट है, क्योंकि प्रमोशन के मैटर्स में भी वो रिजर्वेशन पाता था, तो ये कहा गया कि जब जनरल कैंडिडेट प्रमोशन पाएगा तो वो हमेशा रिजर्व कैंडिडेट के ऊपर बैठेगा. कैचअप रूल के अंदर ये कहा गया. लेकिन कैचअप रूल अजीत सिंह के केस में आया था, अजीत सिंह, और इस पे वीरपाल सिंह का केस याद रखिएगा. अब इसको हटा दिया गया है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी से 77th क्यों 85th CAA से, याद रखिएगा इसको. आगे आ जाइए. नेक्स्ट, राज्यसभा कैन विथहोल्ड मनी बिल फॉर अ पीरियड ऑफ ओनली 14 डेज. मनी बिल के मैटर्स में राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर नहीं होती है, लोकसभा के पास पावर होती है. फाइनेंस बिल्स आर इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन लोकसभा ही के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं फाइनेंस बिल्स. मनी बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा, जी हाँ. प्रोरोगेशन मीन्स इट इज द टर्मिनेशन ऑफ सेशन, हमेशा याद रखिएगा. समन करेंगे जब आप बुलाएंगे हाउस को, एडजर्नमेंट मतलब वो सिटिंग जो है वो एंड हो जाती है, प्रोरोगेशन सेशन ही एंड होता है, ठीक है. यूजुअली एडजर्नमेंट सिनेडाइन के बाद. अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जाट कम्युनिटी इट इज नॉट अ बैकवर्ड क्लास. राम सिंह का केस देख लीजिएगा, राम सिंह केस. नेक्स्ट, The provision to fill backlog vacancy was inserted in the Article 16. ये आया था 81st Constitution Amendment Act से, 81st Constitutional Amendment Act से, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, an unlawful compulsory labor is deemed to be practice untouchability. Scavenging, any car का sweeping, सब आता है, D करेक्ट हो जाएगा. Which of the following is prohibited without the consent of the president? सारी चीजें, conferment of title, accepting any title, accepting any gift or emolument, सारी चीजें आती हैं इसके अंदर. टाइटल्स मना किए गए हैं. A citizen of India who holds any office of profit or truth under the state cannot accept any title from any foreign state without the consent of the president. अब ये भी हम लोगों ने देखा यहाँ पे. उसके बाद right to form association under Article 19 Clause 3 includes right to strike,
राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, राइट टू लॉकआउट, नन ऑफ दीज। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में भी देखा हुआ था, ठीक है, डी नन ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, फंडामेंटल राइट है असेंबल पीसफुली, असेंबल विद आर्म्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन टू ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली फॉर चैरिटेबल पर्पज। तो यहाँ पे ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट ओन ओनली फॉर चैरिटेबल पर्पज, जी नहीं, बी हियर वुड बी अ करेक्ट आंसर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया है। Which of the following is not a ground on which a reasonable restriction on right to freedom of speech can be imposed? Security of state आर्टिकल, देखिए एक्चुअली क्या है, आर्टिकल 19 जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है आर्टिकल 19(1) और एक है आर्टिकल 19(2) से लेकर के 6 तक की, राइट। इसमें 6 फ्रीडम्स दिए गए हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शंस दिए गए इनके ऊपर। तो यहाँ पे क्लॉज 1 के अंदर, क्लॉज 2 के अंदर एक्चुअली, क्लॉज 2 के अंदर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है, पब्लिक पॉलिसी नहीं है। सो डी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू लिबर्टी ऑफ प्रेस? जी हाँ, मैंने आपको बताया क्लॉज 1A के अंदर ये इम्प्लाइड है। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, 6 freedoms under Article 19 of the Constitution are sacrosanct and inalienable, absolute without restriction, subject to reasonable restriction। अभी मैंने बताया, जी हाँ, इनके ऊपर restrictions impose किए जाते हैं। Next, freedom of press available to all people, specifically provided, implied in the right of, जी हाँ, C here would be the correct answer। Constitutional right which is not a fundamental right, equality, life, freedom, property, जी हाँ, आपको पता होना चाहिए, by the way of 44th Amendment Act 1978। All right, चलिए, it used to be a fundamental right but only a legal right, right to property। 20 subclause 3 guarantees the right against self incrimination to a witness, accused, any person, none of the above। एक accused person को ये right दिया गया है, ठीक है। Protection of life and personal liberty under Article 21 is available to only citizen, available to any person, not available to any alien। B here is the correct answer, it is available to any person। All right, next, Supreme Court of India has traced the right to privacy in Article 21। All right, remember the K. Puttaswamy verdict। Next, procedure established by law under Article 21 means the due process must be followed, a procedure laid down or enacted be followed। Same things that due process, a law which is reasonable, fair and just, absolutely correct है, and it has been rightly said in the landmark judgment of Maneka Gandhi versus Union of India। All right, just, fair और reasonable होना चाहिए। Next आ जाइए, Article 21A of the Constitution provides for minority right, equality before law, abolition of titles, education. We have just seen a right to education comes under the right to under Article 21A। Right of accused to speedy trial is a fundamental right under which of the following? Again 21, और इसमें आपको याद रखना है हुसैन आरा खातून का केस। All right, very very important। Next आ जाइए, which of the following is not a right covered by Article 21? Right to health, education, safe drinking water, right to strike। Strike नहीं covered है, जी हाँ, पता होना चाहिए आपको। D here is not the correct answer। Which article provides that employment of children in hazardous factory is banned? 21, 22, 23, 24। चिल्ड्रन से रिलेटेड 24 है, बेगार और लेबर से रिलेटेड 23 है और चिल्ड्रन से रिलेटेड 24 है। D here is the correct answer। A private organization hires an employee at less than minimum wage। By this act, A violates the right to employee under Article 23, does not violate the right of employee under Article 23, does not violate the rights of the employee under Article 23, since only applies against the state। Here, जी हाँ, A here would be the correct answer। 22 subclause 4, the exception of certain maximum period for detention under PD laws is, मैंने आपको बता दिया 3 महीने का है, 3 months is the correct answer। Next, freedom of conscience, free profession, practice and propagation of religion are subject to public order, morality and health, subject to public order, law and discipline, subject to law, executive order and statutory restrictions, subject to directive principles। Correct answer here is A, subject to public order, morality and health। Next question, Supreme Court can move under Article 32
फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. जी हाँ, नथिंग एल्स. DPSP इज नॉट जस्टिसेबल एंड नॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज. For the enforcement of any fundamental right, a writ petition must be first moved. Writ petition cannot be filed directly. It can be directly moved in the Supreme Court. A writ petition cannot be directly moved. Absolutely correct. A here would be the correct answer. Can be moved. This is your fundamental right. Habeas corpus means to produce the body of person illegally detained. Respect the human rights. Stop the violation. A here would be the correct answer. Next. Which of the following protects the personal freedom? Quo warranto, mandamus, habeas corpus, certiorari. Absolutely correct. Habeas corpus is the correct answer here. Next आ जाइए. A writ issued by the Supreme Court against a person who claims or usurps any office. Quo warranto. जहाँ पे भी office की बात आए, quo warranto would be the correct answer. Next, X has been illegally detained by the police authorities. His father has been advised to file a writ petition before the High Court. Which writ should be prayed? Again, we have already seen habeas corpus, illegal detention. The system of PIL has been introduced by the political parties, Constitution Amendment, Parliamentary Act, by judicial initiative. B here would be the correct answer. Next, public interest litigations are entertained by the Supreme Court under Article 19, 36, 32, 131, under Article 32. अब ये मैच करने की बात करी गई है. हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो, सर्शियरी. अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर, कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड बाय पेरेंट्स. अट्रैक्ट क्या होगा? Custody, violation of natural justice, certiorari, quo warranto, appointment of a or mandamus, refund of a money illegally collected as assessed by taxing authority. ठीक है? So here A का 2, A2, all right, B और D ये तो eliminate हो गए. B का 4. So B here is the correct answer. C1 and D3. All right. Next, this is very easy. 17, untouchability. 42, maternity relief. Press 19 and 21. चलिए. An order or decision which suffers from an error of law apparent on the face of the record can be quashed. Quashing के बाद जहाँ पे भी आए, certiorari would be the correct answer. ठीक है? Next question. When a writ is issued to an inferior court or tribunal on the grounds of exceeding its jurisdiction or acting contrary to the rules of natural justice, it is called A. A here would be the correct answer, that is certiorari. Next, direct principle are justiciable, non-justiciable, not all are justiciable but some. A here would be the no. B here would be the correct answer, non-justiciable. DPSP have been borrowed from the Constitution of Ireland. Irish Constitution से borrowed है. All right. Next, what is the aim of DPSP? To establish a welfare state, promote communalism, economic state, maintain law and order. A here is the correct answer, to establish a welfare state. Next, which committee is related to Panchayat Raj institutions? Mudholkar, Balwant Rai, Malimat Khulkar. B here is the correct answer. उसके बाद DPSP is infringed. There is a remedy in the court. There is no remedy by judicial proceedings. There is a remedy in Lok Adalat. There is a remedy in the special executive magistrate. अगर DPSP violated है तो ऐसी कोई judicial remedy आपके पास नहीं है. You know it is not justiciable. आगे, organization of agriculture and animal husbandry is a principle mentioned in under article 48, right? Under article 48. जी हाँ. Next, concept of equal justice and free legal aid, 39A inserted by the, याद रखिएगा 42nd CA. Next, 39A, it talks about adequate means, equal pay for equal work, material resources, health and strength. 39 clause A की बात हो रही है. ध्यान दीजिएगा. Article 39 clause A here specifically talks about that there have to be adequate means of livelihood. A here would be the correct answer. Equal pay for equal work is provided by which act? Workmen compensation, equal remuneration, trade union. Here the correct answer would be Equal Remuneration Act. Next, mini constitution सबको रट चुका होगा, 42nd Constitution Amendment Act. Next question, which of the following is not a fundamental duty? To abide by the constitution and respect, value and preserve, to provide opportunity, to have compassion for living creatures below age of 6 years. क्या लगता है? C here is the correct answer.
ये नहीं दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स प्रूव मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव कर सकते हो आप? ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजिंग। हियर इज द करेक्ट आंसर, ओनली फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा इस चीज को, भूलना नहीं। आगे आ जाइए। नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग प्रेसिडेंट। राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होते, लोकसभा के होते हैं। सी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। ओथ एडमिनिस्टर्ड टू द प्रेसिडेंट बाय स्पीकर, पीएम, अटॉर्नी, सीजीआई। जी हाँ, सीजीआई एडमिनिस्टर्स इन दी ओथ। ऑलराइट, नेक्स्ट। Ordinance issued by the president shall remain in force for a period of 6 months, 1 year, 6 weeks. 6 weeks here is the correct answer. 6 weeks from the date of assembly of the parliament, जब रीअसेंबल होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? यू शुड नो, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट the number of ministers have been limited to 15% of the total members? ये आपको पता होना चाहिए। It is the 91st Constitution Amendment Act. The 91st Constitution Amendment Act. Next, which provision of the Constitution incorporates the principle of collective responsibility? Article 75, Clause 3 to the Lok Sabha, to the lower house, that is the Lok Sabha. Next. Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the power of governor to promulgate ordinances during recess? Ordinance governor की जो power है, C article 213, article 213 is the correct answer. Next, the governor of state shall have the power to grant pardon to any person convicted of any offence. governor के पास क्या power होगी death sentence देने की? life, relating to central law, relating to state law, sentence to life. तो यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है द गवर्नर शैल नॉट हैव द पावर टू डेथ सेंटेंस। जस्ट अ सेकेंड, रिलेटिंग टू सेंट्रल लॉ, इसको मैं एक बार आपको चेक करके बता दूंगी। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन टू एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। ओके, सेंटेंस टू डेथ, सेंटेंस टू लाइफ, रिलेटिंग टू सेंट्रल लॉ, रिलेटिंग डी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक डी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जॉइंट सिटिंग इट टेक्स प्लेस अंडर आर्टिकल 109. Article 109 talks about the joint sitting of the, very very important. The joint sitting of both the houses takes place under Article 108, 108, very very important. जब डेडलॉक होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी बिल से रिलेटेड मान के चलिए किसी डिसीजन पे वो नहीं आ पाते, तो वहाँ पे डेडलॉक की सिचुएशन होती है, आर्टिकल 108 में दिया गया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा? 12 members. All right, 238 plus 12. Next, the maximum gap between permissible 2 sessions, it is 6 months. Next, how many members of Rajya Sabha retire after every 2 years? 1/3 members. देखिए याद रखना है आपको, 1/3, 2 years, 6 years का इनका टाइम होता है। आगे आ जाइए। Who is not a member can remain a minister only for 6 months. तो एक मेंबर और मिनिस्टर में डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि एक मिनिस्टर जरूरी नहीं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, लेकिन उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना पड़ता है विद इन 6 months. नेक्स्ट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अदर देन द सीजीआई, द सीजीआई आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द कैबिनेट, द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन। जी हाँ, बी हियर इज द करेक्ट आंसर, द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन विद द सीजीआई. नेक्स्ट क्वेश्चन, जजेस disputes between states in India come to the Supreme Court under the original jurisdiction. जी हाँ, I just told you. Supreme Court is a court of record. This means all the decisions are recorded. All statements of Supreme Court are binding. A and C would be correct answer. It has the power to punish for a contempt and recorded judgments. Has evolved the curative petition. कौन से particular उसके अंदर दिया गया है? Curative petition का जो law evolve हुआ है under Article 143, under Article 32, under Article 142, under Article 136 of the Constitution. What would be the correct answer? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर, वैसे क्यूरेटिव पिटिशन से रिलेटेड जो
पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, जो पर्टिकुलर रिव्यू का दिया गया वो आर्टिकल 137 में दिया गया है, ठीक है, 137 में दिया गया. दिस आई विल लेट यू नो. The Supreme Court has evolved the concept of curative petition definitely from Article 32, from Article 32 of the Constitution. We shall check this answer. आगे आ जाइए. According to which article of the Constitution, law declared by the Supreme Court shall be binding? Binding तो Article 141. Next, which of the following articles of the Supreme Court has the power to review its decision? Just I told you Article 137, right? Next, the rule-making power of the Supreme Court is not subject to any law made by the Parliament. Reason, only an impartial and independent judiciary can protect the rights of the individual without fear or favor. जी हाँ, so A is true, A and both B here would be the correct answer. The power of judicial review means the power of the Supreme Court to set aside any executive decision, to set aside any provision of law if it is contrary to the fundamental rights, examine the constitutional validity of any administrative action as well as legislative action, provision and strike down if not found in accordance with the constitution provision, review its own decision. C here would be the correct answer. Parliament has the power to legislate with respect to any matter in the state list in national interest. A, on passing a resolution with required majority by the concerned state legislative assembly, passing a resolution with the majority of the Raj Sabha, Lok Sabha, promulgation. B here would be the correct answer. Here we are talking about Article 249. Next, Part 9, 73rd Constitution Amendment Act से insert किया गया था. उसके बाद Proclamation of Emergency, which of the following articles cannot be suspended? Article 21 and 20 and 21 cannot be suspended. Automatic suspension Article 19 का हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. Article 19 automatically suspended. Next, Proclamation of National Emergency automatically suspends all fundamental rights, right to freedom, right to constitutional remedies, no fundamental rights. C here would be the correct answer. Constitutional remedies जो हैं वो suspended हो जाती हैं. The right to move to the court वो आपका रुक जाता है. आगे आ जाइए. ओके, जस्ट अ सेकेंड. जी हाँ, मतलब आप कोर्ट तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली 358 के हिसाब से राइट टू फ्रीडम जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑटोमेटिक सस्पेंशन. During the proclamation of emergency, the duration of the House of People may be extended by the Parliament for a period not exceeding 1 year at a time. 1 year at a time. एक साल के लिए एक बार बढ़ा सकते हैं. Highest law officer of the state is the Attorney General of India for India. Finance Commission gives recommendation to the President as to distribution of net proceeds, principle which should govern measures needed to augment. Correct answer here would be A. Distribution of net proceeds. Who among the following is known as guardian of privy purse? CAG, Parliament, Finance Commission or Finance Minister? A here would be the correct answer. CAG is known as the guardian of privy purse. Tenure of CEC, 5, 62 years, 62 years. Here correct answer is 6 years or 65 years of age, whichever is earlier. In deciding the question as to disqualification of a member of Parliament, President shall act. याद रखिएगा हमेशा ECI इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, UPSC members have a tenure of again 2 years, 3 years, 5 years, 6 years. It is of 6 years term. Next, Constitution was adopted 26th November 1949. Everybody should remember the law day, the Constitution day. Provisions as to administration of tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura is in which of the following schedules? 3rd schedule, 8th schedule, 5th schedule या D, none of the above. तो आपको ये पता होना चाहिए. It has been given in the 5th schedule of the Constitution. 5th schedule के अंदर दिया गया है with regarding to the provisions relating to such particular schedule states. Right? आगे आ जाइए. A law placed under Schedule 9 of the Constitution can be struck only by the Supreme Court if court satisfied that such law violates Part 3rd. Can only be struck by Supreme Court if court is satisfied that the law violates the basic structure. Cannot be struck since it is located in Schedule 9. Can be struck down like all other laws. तो यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए कि इसको पार्ट 3rd के वॉयलेटिव अगेन अगर होगा, इसको एक बार हम चेक करेंगे. ये उसकी बात कर रहा है. इप्रू सुधाकर का केस था, इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट कियोटो होलालान का केस है. We'll just see it. And D can also be the correct answer of this question. So we'll just check it and I'll let you know. 9th schedule relates to the laws which cannot be judicially reviewed, law which are not in concurrent list, the laws which deal with detention,
द लॉज पर्टेनिंग टू एक्विजिशन और रिक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो एक्चुअली ये जो लॉज डाले जाते हैं जुडिशियल स्क्रूटनी से बचने के लिए डाले जाते हैं, लेकिन ये जो लॉज रिलेटेड होते हैं, दीज लॉज आर रिलेटेड टू वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। तो अगर किसी एक्ट और रेगुलेशन की बात करते हैं तो अगर आपने 9 शेड्यूल में डाल दिया तो उनकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकती है, लेकिन विथ पर्टिकुलर जजमेंट्स के हिसाब से डिसाइड हुआ है कि भाई इनको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ को चेक करा जाएगा। इसका एसेंस ये होता है, इट कैन नॉट बी स्ट्रक डाउन बिकॉज इट इज गिवन इन द 9 शेड्यूल। वी विल जस्ट चेक एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। 262 अगेन talks about the adjudication of interstate rivers. I just told you 262, 263 interstate council की बात करता है, और यहाँ पे it has been mentioned the short title has been given under article 393. very important. Short title has been given under article 393 of the constitution. और मूविंग फॉरवर्ड, सिक्किम का जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है इसमें कौन से आर्टिकल्स में से दिया गया है? 371, 371A, 371C, F, D here is the correct answer. Amendment Act of the Constitution inserted the Sindhi language. It is the 21st Amendment Act. All right. Moving forward, the provision relating to federal structure can be amended only by the 2/3 majority with the ratification of the half of the states. The first Constitution Amendment Act was passed in 1951. I told you. Next, amendment to which of the following provisions requires ratification? 242, List 1, Chapter 5, Chapter 2. So here, List 1 of the 7th Schedule can only be amended. 7th Schedule discusses the provisions incorporated regarding the federalism. तो कहीं ना कहीं B here would be the correct answer. In amendment of the Constitution to make change in the provision relating to establishment and constitution of the Supreme Court requires, before giving assent of the President, to be passed by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting. Ratification by the resolution to that effect, जी हाँ, both C here would be the correct answer, both A and B. All right, again. DPSP का precedent over the fundamental rights बहुत इंपॉर्टेंट है. DPSP का प्रेसिडेंस ओवर दी फंडामेंटल राइट्स, अगेन बहुत सारे अटेम्प्ट्स करे गए थे फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे अटेम्प्ट्स करे गए थे, और कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड जो करेक्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच ऑन द फॉलोइंग अमेंडमेंट अकॉर्ड्स द प्रेसिडेंस टू DPSP ओवर दी फंडामेंटल राइट्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24th, 39th, 44th एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट. ये कोशिश करी गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, अगेन ऑल द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन द पार्ट 4, इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है. 42nd अमेंडमेंट एक्ट. नेक्स्ट, आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद द राइट टू प्रॉपर्टी रिपील किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट से. नेक्स्ट, विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वाज अमेंडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट टू लाइफ. जी हाँ, 19(1)(c) के अंदर डाला गया, 19(1)(c). नेक्स्ट, which of the following amendments of the constitution related with the reservation in private education institution? 91st, 92nd, 93rd. जी हाँ, 93rd Constitution Amendment Act 2005. Moving forward, which of the following amendment is related to reservation of seats in education for economic weaker section? जी हाँ, 103rd Constitution Amendment Act. All right, 103rd Constitution Amendment Act. Which constitutional amendment introduced the anti-defection provisions? It is the 52nd Amendment Act which added the 10th schedule in the constitution. 10वां schedule इसने add किया था. ठीक है. Next, the subject of forest was transferred from state list to the concurrent list of the 7th schedule by the Constitution 24th Amendment Act. 42nd, 44th या 45th, 44th. It is the 42nd Amendment Act which shifted the provisions relating to forests from 7 schedules state list to the your concurrent list, right? Yes. So it is the 42nd Amendment Act of the Constitution. Very important. All right. चलिए आगे आ जाइए. Next, which of the following Constitution Amendment Act the voting was reduced? It was the 61st Constitution, 1988. All right. Next, basic structure can be amended by simple majority.
2/3 majority by special majority and ratification. None of the above. Basic structure of the constitution cannot be amended. All right, it cannot be amended. So that's all. I think the last question here: which constitution amendment act relating to the appointment of judges came for the consideration before the Supreme Court and was struck down being violative of basic feature? जी हाँ, it was the 99th Constitution Amendment Act that relates to NJAC. All right. So with this we end today's session and I hope and I wish कि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो and I hope this was beneficial for all of you. Kindly keep your bare axe in front of you. अपने notes को सामने रखिएगा, फिर रिवाइज करिएगा. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए. See you guys soon in the next lecture. तब तक के लिए all the best from our side, from our team. बहुत बहुत all the best. आपको एकदम फोड़ के आना है. Take care. See you soon in the paper analysis. Take care and goodbye.